Yes, Anjali ji. વેલકમ તમે કહો છો ને ખાલી હા 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 So I request every member to keep your right hand on your heart, and I request the branch to play the ICI motto song. Yaesha supteshu jagrati, Yaesha supteshu jagrati, Kamam 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 निर्विमाणः निर्विमाणः तदेव शुक्रं तदेव शुक्रब्रह्मा तद्ब्रह्मा तदेवामृतमुच्यते तस्मिन् लोकः शतः सर्वे तदूनात्यपि कश्चन एतद्वैता 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 एतद्वैता. Thank you, Branch. The very distinguished faculty for the evening, IRS and a chartered accountant, Sarika Jain ji, and apart from that, a role model and an inspiration for many lady chartered accountants and ladies members and also youngsters. The chairperson of Vikasa, CA Anjali Choksi, the secretary of branch, CA Bishan Shah, vice chairman of Vikasa, Jai Motwani, Nisha Patel, the committee member of Women Empowerment Committee, and various other members present here. On behalf of Ahmedabad branch, I welcome you all to this wonderful evening to learn, to have an inspirational message from our learned faculty, Sarika Jain ji. In my welcome address, I want to tell two things. One is, like, if I tell you that whenever we are in any kind of, you can say, health mishap, यानी हमें कोई बीमारी होती है, तो उसके सॉल्यूशन के लिए या उस बीमारी में से बाहर आने के लिए हमारे पास हमेशा दो चीज होती है. एक होता है ड्रग और दूसरा होता है एक थेरापी. दोनों के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस है. जैसे ड्रग अगर हम ले लेते हैं तो इट गिव्स अस इमीडिएट इफेक्ट, बट इट इज नॉट एवरलास्टिंग, इट इज टेम्पररी. बट उसी की जगह पे अगर हम ड्रग को अवॉइड करके एक सिस्टमेटिक थेरापी ले तो उससे उस बीमारी में से बाहर आने की स्पीड थोड़ी स्लो होगी, पर जो भी होगा वो एकदम अच्छी तरीके से होगा. यू माइट बी सेइंग दैट व्हेनेवर आप ये ड्रग और थेरापी का एग्जांपल क्यों दे रहे हो, देन हियर व्हाट इन माय ओन पर्सपेक्टिव इज द डिफरेंस बिटवीन अ मोटिवेशन एंड एन इंस्पिरेशन. नॉर्मली हम जब कोई मोटिवेशनल स्पीकर को सुनते हैं जो दूसरों की कहानियां हमें सुनाते हैं, तो वो एक मोटिवेशन की तरह काम करता है, जिसकी इफेक्ट उस क्षण पे जरूर होती है, पर वो बहुत टेम्पररी होती है. जबकि उसके सामने इंस्पिरेशन जो होता है वो हमेशा एक थेरापी की तरह होता है, जो हम एक बार सुनते हैं, जिसने उस लाइफ को जिया है, उसके लाइफ एक्सपीरियंस को उनके द्वारा सुनना, इट्स लाइक अ थेरापी एंड इट हैज एन एवरलास्टिंग इंपैक्ट directly on our heart.
एंड ये मौका पाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, राइट? और ये मौका आज अहमदाबाद ब्रांच को मिला है बिकॉज ऑफ टू रीजंस. वन इज अंजलि बेन कोऑर्डिनेटेड एंड अनदर रीजन इज सारिका जी accepted the same to guide us all on this particular thing. So I would like to thank both Anjali Ben and Sarika ji to give branch this opportunity to hear to an inspirational story of, I can say, though we wrote physically disabled, but I'll say mentally super able, a super exemplary skill possessor, that is Sarika Jain ji. And Sarika ji, मैं अगर आपको कहूं कि जैसे हमने ये सेशन लॉन्च किया, उसके 4-5 दिन के बाद जब ये सेशन फ्लोट हुआ, तो मेनी स्टूडेंट्स वर सेइंग दैट सर दिस इज अ रॉन्ग टाइम टू हैव अ सेशन, बिकॉज हम एक तो आर्टिकलशिप में होते हैं, राइट, प्लस हमारी एग्जाम्स भी है. तो फिर हमने डिसाइड किया कि नाउ वी कैन नॉट because we are having n number of sessions, but then we decided that we will have a complete recording of this session, and after editing we will keep it on our YouTube channel so that everyone can access the same. So again, I thank you all for joining, and now I request Anjali Ben to take the session ahead. Am I audible? Chairman of the branch, CA Fenil Shah. Secretary of the branch, CA Bhishan Shah. Women Empowerment Committee member, CA Nisha Patel. And esteemed, distinguished speaker of today, and my dear friend, IRS CA Sarika Jain. Thank you so much for coming to branch. It is a matter of pride and pleasure to invite you, and the most remarking feature is, ma'am, you gave your acceptance at one call. So this shows your passion to contribute to our profession, and especially in this time when CAs, IRS all are busy in tax audit, and you gave time to us. Thank you so much. All my words are enough to say thank you to you, and especially for you, madam. For today I have taken a learning lesson, since I am a very fond of Lord Krishna, and I keep on reading Bhagavad Gita. So especially for you, I have noted a learning lesson and would like to quote to all my dear members and students. जीवन है तो लक्ष्य तो होंगे, यदि लक्ष्य है तो मार्ग तो होंगे, यदि मार्ग है तो बाधाएं तो आएगी, और इस पे निर्धारित है कि हम जीवन में सफल होंगे या असफल, यक्ष के भागी होंगे या तिरस्कार के. मान लीजिए आपको एक कार्य करना है, आपको पर्वत पर चढ़ना है. अब मार्ग की फिसलन आपको कई बार गिराएगी, चट्टानें आपको कई बार चोट देगी. अब ऐसे में करेंगे क्या? सामान्य व्यक्ति चुनता है प्रतिकार. उस पर्वत को ही क्यों नष्ट करना दूं, ऐसा विचार करता है. उस नींव को ही खोद देने का विचार करता है, किंतु पर्वत तो कभी नष्ट ना कर पाता. तो असफलता के साथ साथ अपयश का भी भागी बन जाता है. और दूसरा मार्ग है जो लॉर्ड कृष्णा ने बताया, वो है परिवर्तन. यदि आप उस पर्वत को खोदने के स्थान पर उस पर सीढ़ियां बना दे, तो आप भी उस पर्वत पर चढ़ सकते हैं, कोई और भी उस पर चढ़ सकता है, और आने वाली कई पीढ़ियां भी उस पर चढ़ सकती है, और यही आने वाली पीढ़ियां सदा आपके यश गाएगी. तो लॉर्ड कृष्णा ने बताया है, तो जीवन में, इसलिए जीवन में प्रतिकार नहीं परिवर्तन चुने, बदला नहीं बदलाव चुने. आपकी सभी बाधाएं खत्म हो जाएगी, इनफैक्ट आपकी मित्र बन जाएगी. And I can very much relate the last 3 lines with today's faculties, जिसने प्रतिकार नहीं परिवर्तन चुना, बदला नहीं बदलाव चुना. And she has faced all the challenges, and that is why challenges has become her friends. So with this words, I can very much relate this learning lesson. I would be glad to introduce Madam. CA Sarika Jain is presently posted as Deputy Commissioner of Income Tax, Aikar Bhavan, Bombay. She has qualified her CA in first attempt in the year 2011. This has not stopped, and she immediately appeared and qualified UPSC 2013 and allotted as IRS. With her challenges described very much in all the publications, she has got many awards, to name few of them. First disabled person in civil service from Odisha, given by Chief Minister Odisha. Bharat Prerna Award by Ample Mission, a social awareness organization.
winner in Life Award by DNA, most motivational woman of the year 2015 by Jain Community, and she has been a motivational speaker in many forums, including ICI Bombay. I once again welcome you, ma'am, and my heart is full of wishes and blessings for you. Thank you so much. I would request ma'am to take अंजलि जी, आपकी बातें सुन के अचानक से मुझे जावेद अख्तर की 2-3 लाइनें याद आ गई। मैंने पहले भी कहीं पे बोला था, आई वुड लाइक टू रिपीट कि जिंदगी है तो ख्वाब है, ख्वाब है तो मंजिलें हैं, मंजिलें हैं तो फासले हैं, फासले हैं तो रास्ते हैं, रास्ते हैं तो मुश्किलें हैं, मुश्किलें हैं तो हौसला है, हौसला है तो विश्वास है, और विश्वास है तो जिंदगी। आप एक बार इमेजिन कीजिए कि आईसीआई का आपका भवन है अहमदाबाद का, आप प्रोग्राम कर रहे हैं और फैनिल शाह जी बोल रहे हैं, आपके चेयरमैन, एंड सारे ऑडियंस चद्दर तान के सोए हुए, आपको कैसा लगेगा? राइट नाउ आई एम फीलिंग द सेम थिंग। अगर आप अपना वीडियो बंद करेंगे तो मुझे ऐसा लगेगा कि लोग चद्दर तान के सो गए। तो आई वुड रिक्वेस्ट एवरीबडी कि आप अपना चद्दर हटाए, तो आई विल फील कि हाँ भैया बोरिंग स्पीच नहीं है। एंड राइट टुडे वी आर नॉट गोइंग टू गिव एनी स्पीच, क्योंकि मुझे पता है कि बहुत तकलीफदायक होता है किसी की स्पीच सुनना। हम घड़ी काउंट करते थे कि कब घंटा कट जाएगा, कब मिनट कट जाएगा, और एक एक सेकंड में घंटे जैसा लगता है। तो आई वुड रिक्वेस्ट एवरीबडी लाइक जीना तुलसिया जी, शी सो प्रोएक्टिव। आई वुड रिक्वेस्ट अदर पीपल, विजय कुमार जी, जेलसिस केम, आई कुड सी एवरीबडी। डोंट फील मी एज एन IRS कि मैं कोई बोरिंग भाषण देके चले जाऊंगी। डोंट फील लाइक दैट। आई एम फ्रॉम योर फ्रेटर्निटी ओनली। आप लोगों ने जो झेला है मैंने भी वही झेला, और हम भी झेल रहे हैं, सेम भी है। प्रफुल्ल जी का बाल और हेयर स्टाइल सब ठीक हो गया अभी। आई विल वेट फॉर 2 minutes मोर। देखिए, हमेशा जो धर्म का कांटा है या सिक्के का पहलू हमेशा चेंज होता है। आज मैं स्पीकर हूँ और आप चद्दर तान के सोए हैं, एक समय ऐसा आएगा आप स्पीकर रहेंगे और हम चद्दर तान के सोएंगे, तो देख लीजिए। तो विल स्टार्ट नाउ एंड जैसे कि फैनिल शाह जी ने कहा, माय हस्बैंड नेम इज विराग शासन, मैं भी विरागो नाम मेरे दिमाग में बैठ गया। तो जिस टाइम ये फ्लायर बन के आया, इन्होंने विरागो नाम लिखा था, एंड ऑनेस्टली मुझे विरागो का मतलब नहीं पता था उस समय। और फैनिल शाह जी ने लिखा कि वेरी कांग्रेचुलेशन टू विराग शाह, मेरा उनको प्रणाम भी बोलिएगा। देन आई थॉट कि ये विराग के नाम पे ही रख दिया क्या विरागो। देन इमीडिएटली आई सर्च्ड डिक्शनरी एंड देन आई कम टू नो कि एक्चुअल में इसकी मीनिंग होती है। और उन्होंने बोला कि आई टुक वेरी प्रॉम्प्ट डिसीजन। जैसे ही अंजलि जी से मेरी बात हुई और आई सेड यस आई विल कम, तो दिस क्रेडिट डजंट गोस टू मी, मतलब मेरे पास नहीं आता इसका क्रेडिट, इट गोस टू माय हस्बैंड ओनली, बिकॉज ही इज सो डिवोटेड टू द ICI। बिकॉज ऑफ हिज डिवोशन ओनली आई गॉट मोटिवेटेड कि नहीं, मुझे भी अपने ICI के लिए कुछ करना है। और हम ज्यादा तो कुछ नहीं कर सकते, देखिए, एटलीस्ट व्हेनेवर वी कैन कंट्रीब्यूट एनीवेयर, आई विल डेफिनेटली लाइक टू डू। कि किसी एक इंसान के कंट्रीब्यूशन से कोई एक CEO को अपनी पढ़ाई करने में मदद मिलती है, तो इससे बड़ा योगदान नहीं हो सकता, क्योंकि हमें पता है कि हमने किस तरीके से एग्जाम पास किया है। बनने के बाद आराम से बोल देते कि हो जाता है यार, ये तो हो गया आराम से, लेकिन बनते समय पता है भैया CPT से PCC से फाइनल भी निकालना बड़ा मुश्किल काम होता था। मुझे अभी भी वो समय याद आता है जब हम CPT देते थे, तो हमारे सामने कोई PCC वाला बंदा होता था, तो उसे देख के लगता था यार PCC है, क्या रेपुटेड बंदा है, क्या इंटेलिजेंट बंदा है, क्या बात होगी, क्या बंदा है। जब हम PCC पहुंच गए तब फाइनल वाले को देख के लगता था यार बंदा फाइनल में, अलग ही रेस्पेक्ट होती थी। जब हम फाइनल में पहुंचे तो हम किसी CA को देखते हुए CA बन गए, मतलब अलग ही रेस्पेक्ट होती थी। ऐसा लगता था एक बार CA बन जाए लाइफ की सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। पर एक्चुअल में जिस दिन CA बने तब पता चला कि प्रॉब्लम तो अभी शुरू हुई है।
सुख भरे दिन बीते रे भैया, वैसा ही हाल हो गया। ड्यूरिंग दिस कोरोना पीरियड ऑल्सो मैक्सिमम पीपल, हो सकता है बहुत सारी इंडस्ट्रीज बंद हो गई होगी, प्रोडक्शन बंद हो गया होगा, ट्रेडिंग बंद हो गया होगा, लेकिन सीए का काम बंद नहीं हुआ। मैंने नहीं देखा कि कोई सीए आराम कर रहा है। वो घर पे बैठ के भी, मतलब फर्स्ट 21 डेज पे भी वो कंटिन्यूअस काम कर रहा था। वही बिजनेसमैन आराम से बैठा होगा कि चलो भाई अब तो दुकान ही बंद होगी, क्या कर सकते हैं, लेकिन सीए का काम बिल्कुल बंद नहीं हुआ। एंड सेकंड, वो एग्जाम पोस्टपोन हो रहा है, डेट पोस्टपोन हो रहा है, तो वो कसमकस की आज होगा कि डेट एक्सटेंड होगा, तो वो उसमें समय निकाला इन्होंने। तो बट अगर पूरी दुनिया घबरा जाए तो यकीन होता है मुझे कि कोरोना आ गया, पेंडेमिक आ गया, हम कैसे करें, लेकिन एक सीए घबरा जाता है तो मुझे यकीन नहीं होता है। रीजन क्यों? हमारी बनावट ही अमेंडमेंट प्रूफ हुआ है। सीए फाइनल एग्जाम होता है, अमेंडमेंट आ जाता है। पीसीसी फाइनल एग्जाम होता है, 1 महीने पहले, 15 दिन पहले अमेंडमेंट आ जाता है। तो हमारी बनावट नहीं, आईसीआई ने अमेंडमेंट प्रूफ बनाया, तो फिर ये तो एक अमेंडमेंट ही है। दिस पीरियड इज अमेंडमेंट। हमारे लाइफस्टाइल को वो चेंज करने का तरीका लाया फिर से। अभी तो हम फिर भी नॉर्मल की तरफ बहुत जा रहे हैं। इनिशियली लॉकडाउन पीरियड में हमने देखा कि जीना तो है, हमें एक चेंज तरीके से जीना है। मुझे ऐसा लग रहा है लोगों को अभी भी नींद आ रही है। देखिए, अगर आप भी सीए है तो मैं भी सीए हूँ। अगर आप सिर्फ लेना चाहते हैं तो मैं देने के लिए तैयार हूँ। 2 वे कम्युनिकेशन होना चाहिए, आपका भी जाना चाहिए, मेरा भी जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि बार्टर सिस्टम है, भाई आप देते रहो हम लेके चल दे, बिल्कुल भी नहीं चलेगा। आई वोंट फील हैप्पी। आई जस्ट वॉन्ट टू नो, ऐसी क्या 2 चीज है, अगर आपकी लाइफ में मैं आपसे बोलूं कि ऐसी 2 चीज याद करें जिससे आपके चेहरे पे सबसे ज्यादा मुस्कान आ जाए सुनते ही, तो याद कर पाएंगे, बता पाएंगे? और डेफिनेटली मैं आपको बताऊंगी तो आप बोले, एकदम बोलेंगे हाँ दिस इज टोटली करेक्ट। पर आप खुद सोच के बताइए कि ऐसी 2 चीज क्या है जिसको सुनते ही आपके चेहरे पे स्माइल आ जाए, याद आ जाए, इससे सुख भरा दिन कुछ नहीं होगा। आई वुड लाइक टू आस्क प्रफुल्ल जी अनम्यूट करके बताइए। पैसे को छोड़ दीजिए भैया, तिजोरी में पैसे रखना, बैंक बैलेंस बढ़ना, सैलरी आ जाना, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मनी टुडे, ओके? तो आप ये वाला मत बताइए कि अकाउंट में जैसे ही पैसा बढ़ जाता है तो बहुत खुशी हो जाती है। इसके अलावा ऐसी 2 चीज जब भी आप याद करेंगे तो आपको लगेगा यार वो समय में फिर से पहुंच जाऊं। बताइए प्रफुल्ल जी। frankly speaking, कुछ टाइम मैंने मेरे आश्रम में बिताया था, बेंगलोर आश्रम में, आर्ट ऑफ लिविंग के। आई एम अ टीचर ऑफ आर्ट ऑफ लिविंग। तो 15 डेज के मैंने वहाँ पे 2 मेरे ट्रेनिंग सेशन हुए थे गुरुजी के साथ में। तो वो अभी लाइक 12 साल हो गए बात को, और जब भी याद करता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी आती है कि बहुत अच्छा टाइम बताया। और बचपन का टाइम याद आता है जब हम एकदम फ्री हुआ करते थे, कोई टेंशन नहीं हुआ करती थी, लाइक अप टू 10th 11th बस। वाला 35 years of this profession, और उसमें कभी वो मजा नहीं आया जो 35 साल पहले मजा था। थैंक यू प्रफुल्ल जी। मैं प्रफुल्ल जी के बातों पे कुछ कमेंट करने से पहले एक बात और बताती हूँ। पहले मैं आपको 2 इवेंट बताती हूँ, हर कोई सुनिएगा। वो मैं हर किसी का एक्सप्रेशन देख रही हूँ कि वो 2 इवेंट में, आई वुड रिक्वेस्ट वंस मोर, दिस इज द लास्ट टाइम रिक्वेस्ट, अपने आप को वीडियो पे लेके आइए, कोई दिक्कत नहीं है। डोंट हेजिटेट, आप कहाँ हो, क्या हो, मेकअप किया है या नहीं किया है, नाइट वेयर्स में, इट इज ओके, वी अंडरस्टैंड एवरीथिंग। पीछे बैकग्राउंड कैसा, डोंट वरी यार। तो अंकुर गोयल जी, अनेरी सेठ, मुझे या तो ऐसा लगेगा फेनिल सा जी आपने वो लोचा और पापड़ा सब खिला खिला के ऑडियंस बैठा दिया है पीछे से, भैया पब्लिक दिखनी चाहिए, ऐसा तो नहीं है ना? तो आई वुड टेल 2 थिंग्स। आप मुझे बताइएगा कि आपके चेहरे पे वो मुस्कान आया या नहीं आया उसे सुन के। जब आप स्कूल पे थे एंड पूरी तैयारी के साथ गए हैं और जाते ही पता चलता है कि पहले क्लास टीचर नहीं है, पहला क्लास आज खाली है, तो कैसा लगता था? सेकेंड इवेंट, उसी स्कूल पे पता चला लास्ट क्लास 10 मिनट पहले छोड़ दिया।
तो उससे ज्यादा कोई खुशी वाली बात हो सकती है? प्रफुल्ल जी देखिए वो भी वहां से अंगूठा दिखा रहा है कि उससे ज्यादा लाइफ में खुशी देने वाली चीज कुछ हो सकती है? अंकुर गोयल जी आप बताइए। यस मैम, यस मैम। क्लासेस, अच्छा स्टोरी मैम, छुट्टी रहती तो स्टोरी टेलिंग चालू हो जाता था। कॉमिक बुक्स खोलिए और स्टोरी सुनाना चालू। मतलब पढ़ना है, लेकिन वो जो 10 मिनट एक्स्ट्रा मिलता था लाइफ में, वो मतलब आप 10 लाख भी देते इनकम्पेरेबल, आप उसको एक्सचेंज ही नहीं कर सकते। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू, वेरी दैट ट्रू। वाज द लाइफ। जस्ट थिंक, आपकी लाइफ में आज के मोमेंट, आप पहले का मत सोचिए, आज, क्योंकि आज आप जहां खड़े हो आपकी इच्छा है। आपने सोचा कि मुझे पढ़ाई करना है, सीए बनना है, ये करना है, फिर प्रैक्टिस पे जाना है, या बिजनेस में जाना है, या फिर जॉब करना है, ये दिस इज योर डिसीजन। आज आप जहां भी खड़े हो आपकी मर्जी से खड़े हो। तो करंट पे ऐसी क्या चीज है जिसको सोचते यार मजा आ गया? ऐसा होता है नहीं होता है पहले सोचिए। नॉट नेसेसरी कि होना ही चाहिए, हो भी सकता है कि आज के दिन में आप स्ट्रेसफुल हो, डिप्रेशन में हो, पता ही नहीं चल रहा है खुश हो या नहीं हो, मशीन की तरह काम कर रहे हो भी सकता है। बस जस्ट थिंक फॉर ए मिनट। मैं भी खुद भी सोचती हूँ कि मैं ऐसा कुछ कर रही हूँ कि जो मुझे खुशी दे आज इमीडिएटली। जस्ट थिंक फॉर 2 मिनट। आई विल आस्क मौलिक खंसारा जी से, बहुत सीरियसली बैठे, मुझे सीरियसली नहीं बैठना है, चेहरे पे स्माइल रहनी चाहिए, हमेशा तो तकलीफ में जाता ही है। मौलिक जी बताएंगे, मौलिक जी अनम्यूट कीजिए प्लीज। मेरी आवाज नहीं जा रही मौलिक जी आपके पास? मौलिक जी अनम्यूट नहीं हो रहा है, वहां से अनम्यूट नहीं हो रहा है। देखिए मौलिक खंसारा जी को अनम्यूट कीजिए। हाँ जी बोलिए। आपको बताना ऐसी क्या चीज है आज के करंट लाइफ में जिसको सुन के या सोचते ही आपको बहुत खुशी लगे, हमें बहुत अच्छा चल रहा है? वेरी डिफिकल्ट टू रिकॉल। यस यस, वेरी डिफिकल्ट। अंकुर गोयल जी बताइए। अनम्यूट कीजिए। सॉरी मैम, एक बार वापस मुझे बोलिए ना प्लीज, सो सॉरी। ऐसी 2 चीजें, पैसे को छोड़ दीजिए, हाँ जी। तो सोचते ही आपको लगेगा भाई बहुत अच्छा है। Two things which are good. Nature is very good. Nature is very good, and company of people that you want to spend time with, like that is excellent. Like out of the town, that sometimes nature amazes you in different ways. In the morning I try to see the clouds, so I see it very differently, and sometimes when I sit with the friends, it is a very different environment, like which is not apart from money, which can give you a lot of pleasure, like that. Sorry for the disturbance. No issue. Anybody else want to share something? कोई भी अपने आप को अनम्यूट करके बता सकता है या रेज हैंड। ठीक है, फैनिल जी, चेयरमैन जी कहाँ गए? हाँ, निशा पटेल जी, या प्लीज। Yeah, hi. How are you? बढ़िया Thanks बढ़िया। for this opportunity. Actually, you made me remind my childhood days. I used to be in Punjab, and there we used to have curfew on and off because of terrorism at that time. So normally सब बहुत परेशान होते थे, but we as a kids always praying to God कि अरे यार कल कुछ हो जाए और कर्फ्यू हो जाए तो छुट्टी हो जाएगी स्कूल की। And वो जब happen हो जाता था तो there were nobody else and us to be happy like that. So that was the thing. बच्चे जो school time जो as you said कि भी अपने teacher नहीं आती है, तो this was also the moment when I used to be very happy. And second thing होती थी कि भी नॉर्मली हम लोग फ्रेंड्स 2-3 फ्रेंड्स को करंट आज जब आप सीए बन गए, सब कुछ हो गया, आज के दिन में ऐसी क्या चीज है जिसको सोच के भी आपको लगे यार बहुत मजा आ गया? आज करंट सिचुएशन, प्रेजेंट, कम टू प्रेजेंट में यही है, फ्रेंड्स बस जो पुराने वाले फ्रेंड्स मिल जाएं तो बस वो मारेंगे पकड़ के। हाँ, पति मारेंगे पकड़ के।
नहीं, फ्रेंड्स में सब लड़के लड़कियां एवरीवन। आई एम नॉट सेइंग कि लड़के लड़की वाला बोलेंगे यार मेरा नाम कब लोगे। पति को तो देखो, एज यू सेड ना, फर्स्ट मोमेंट सबसे पहले मैरिज आई थी। व्हेन यू सेड दैट व्हाट इज द मोमेंट, हैप्पीएस्ट मोमेंट, दैट टाइम टू थिंग्स केम इन माय माइंड. That was the time of my marriage, and second thing when my daughter came. But I think that is the happiest moment for everybody. मतलब हर कोई is happy with that moment. So this was something different. I thought I must share with you. Thank you, thank you. अंजलि जी। मैम, आज जो चीजें खुशी देती है वो है फ्री ऑफ कॉस्ट, सनराइज और सनसेट, जो बिल्कुल फ्रीली अवेलेबल है, नेचर के साथ कनेक्टेड रहना, आज वो चीज हाईएस्ट खुशी देती है। अभी तक तो अवेलेबल है, जिस तरीके से कोरोना आया तो फ्यूचर में ऐसा लगता है कल को हवा के लिए भी हमें ना तरसना पड़ जाए। सीरियसली, सही बात है, सही बात है। यस यस, तो दिस इज माय स्टाइल, आप सभी ने देखा। तो नाउ आई वुड आस्क एवरीबॉडी कि भाई ऐसे जाना है कि भैया मैं पेपर पेन लूं और बोल के चले जाओ, ठीक है। तो why these people has called me, because I have very tough struggle life in past, and I really don't want to share that thing कि मैंने अपनी लाइफ में ये सहा, वो सहा, ये तकलीफ हुई, वैसा तकलीफ हुआ, और मैंने ये कर दिखाया, वैसा कर दिया, आई एम समथिंग स्पेशल, आई एम समथिंग डिफरेंट, मेरे में ये है, मेरे में। एक्चुअली ऐसा नहीं है। What I felt or what I am actually feeling कि everybody's life is difficult, और you may say कि हर किसी की लाइफ ही अलग है। जिस तरीके से दो उंगलियां सेम नहीं हो सकती, दो उंगलियों की लकीरें सेम नहीं हो सकती, वैसे ही दो इंसानों की लाइफ भी सेम नहीं हो सकती, चाहे वो दो ट्विंस ब्रदर क्यों ना हो, सिस्टर क्यों ना हो, या सगे भाई बहन क्यों ना हो। बट तकलीफ ये होता है कि हम किसी और की लाइफ को हमेशा अपने से कंपेयर करके पैरामीटर रखते हैं। जब हम बॉस बन जाते हैं तो आर्टिकल को ऐसा बोले तुम्हें तो बहुत छुट्टी मिल रही है, हमारे टाइम पे तो सिर्फ 4 दिन की छुट्टी मिलती थी। तो ऑलवेज वी केप्ट आवरसेल्फ और समबडी एल्स एज पैरामीटर, और उसकी लाइफ को कंपेयर करते हैं। That is a biggest myth what I feel. ये this is my personal opinion. कल को ये मत बोलने कि IRS डिप्यूटी कमिश्नर का ये स्टेटमेंट है, ऐसा होना चाहिए। This forum is totally for my personal opinion. What I used to feel कि हर किसी की लाइफ में जिंदगी कभी भी सीधी नहीं होती है, कभी भी सीधी नहीं होती, हमेशा उतार चढ़ाव होता है। एंड हम क्या सोचते हैं, what we used to feel कि हमारे लाइफ के साथ ही सबसे ज्यादा तकलीफें हैं या प्रॉब्लम है, या मुझे ही झेलना पड़ रहा है, बाकी सब तो आराम से जी रहे। ठीक है, मुझे फेनिल शाह जी दिख नहीं रहे, कहाँ गए, या उनका कोई और अपॉइंटमेंट है? अगर है तो कोई दिक्कत नहीं है, अंजलि जी बता सकते, कोई दिक्कत नहीं। he was in a hurry, कुछ घर में इमरजेंसी आ गई है, तो he has left the session. नो इशू, नो इशू। तो क्योंकि मुझे कहानी याद आया तो उसके एक पात्र को मैं ढूंढ रही थी। अब फेनिल शाह जी नहीं है तो मैं किसे लूं, वही सोच रही हूँ। प्रफुल्ल जी को ले लूं, अंकुर जी को ले लूं, कृणाल शाह जी को ले लूं, किसे ले लूं? चलो ठीक है, प्रफुल्ल गंगल जी को ले लेते हो। ही इज रेडी टू बिकम दैट पात्र। प्रफुल्ल जी का बचपन से सपना था कि भैया मैं पढ़ाई करूं, अच्छा जॉब, अच्छी डिग्री ले लूं, और इसमें शायद डिस्टर्बेंस है, तो अच्छी डिग्री ले लूं। और उनको ये था कि भाई मैं सीए बन जाऊं। एक बार किसी ने ये बोल दिया था गांव पे, सीए बन जाओगे तो दहेज में मर्सिडीज कार मिल जाएगी। उस चक्कर में उन्होंने सीए भी कर लिया। सीए किया, पता चला सीए तो कर लिए रो पीट के, तकलीफ पा के, लेकिन बनने के बाद भी दहेज में उनको मर्सिडीज कार नहीं मिली। दिल के अरमा आंसुओं में रह गए। फिर उन्होंने बोला कोई बात नहीं, मैं मेहनत करूंगा, खुद कमाऊंगा, ऑफिस जाऊंगा, सैलरी से, जॉब से, जो भी आर्टिकल 6 से उन्होंने जो भी किया,
धीरे धीरे पैसे कमाए और फिर उन्होंने फाइनली एक मर्सिडीज कार खरीदी। अब इतनी मेहनत से खरीदी, अगर दहेज में मिलता तो फिर भी ठीक था, तो उनकी मेहनत से खरीदी। अब वो उस मर्सिडीज कार को सोचा कि अगर मैं यहाँ सड़कों पे चलाऊंगा तो वो खराब हो जाएगी, क्योंकि इतनी मेहनत से खरीदी। जो चीज को आप जितनी मेहनत से खरीदते हो उतनी शिद्दत से संभाल के भी रखते हो। तो उन्होंने क्या किया, उस मर्सिडीज कार को ला के अपने गैरेज पे रख दिया। उनको ये लगता था कि यार इतनी मेहनत से खरीदा हूँ, रोड पे चलाऊंगा, यहाँ के बारिश, यहाँ के तूफान, आंधी, गर्मी, धूप से खराब हो जाएगी, मैं इसको संभाल के गैरेज में रखता हूँ। और सुबह शाम 2 अगरबत्ती भी दिखा देते थे। और उनको ये लगता था जब मेरे नाम पे मर्सिडीज कार आ जाएगी, मेरे नाम से लोगों को पता चलेगा, मेरा स्टेटस ही चेंज हो जाएगा। नाउ यू ऑल आर द सेम फ्रेटर्निटी। आप बताइए कि आज उन्होंने जो मर्सिडीज कार को गैरेज पे रखा है तो क्या उनका स्टेटस चेंज हुआ है, या अगर उसको गाड़ी को चलाते रोड पे तो उनका स्टेटस थोड़ा डिफरेंट होता? कोई मुझे बताएंगे प्लीज? एनीबडी? जिना तुलसिया जी? अंदर रखने से तो ऑब्वियसली कुछ भी नहीं होगा, बट बाहर निकालेंगे तो लोगों को पता पड़ेगा। आई डोंट नो, बट मैं शायद इसको हम एज ए सीए वुमेन रिलेट कर सकती हूँ कि सीए की डिग्री तो ले लेते हैं बहुत सारी फीमेल्स, बट ड्यू टू सम अदर रीजन काम नहीं कर पाते। तो बट अंदर रखने से इसकी वैल्यू क्यों नहीं है? व्हाई? इट्स नॉट अबाउट की वैल्यू है कि नहीं है, मतलब मैं समझती हूँ उन्होंने अपने लिए ली थी, तो अगर वो उसको यूज नहीं कर रहे तो क्या खुशी। मतलब जो चीज के लिए बनी उस चीज का अगर हम वो चीज यूटिलिटी नहीं ले रहे कर रहे तो फिर क्या ही मतलब। अच्छा, कृति समानी जी प्लीज। यस मैडम। बताइए कि नहीं, क्या आप कहना चाहेंगे प्रफुल्ल जी को, क्या एडवाइस देना चाहेंगे? मतलब उसको बाहर तो उसको निकालनी ही चाहिए। क्यों निकालना चाहिए? गर्मी में खराब हो जाएगी, कलर लगेगा, बिल कौन देगा? तो फिर लिया ही क्यों था? वेरी गुड। कृणल शाह जी बताइए, व्हाट एडवाइस यू विल गिव टू द? यस मैम। अरे कुछ नहीं, गाड़ी निकालो, सबको दिखाओ। अपने लिए क्यों है? दिखाने के लिए तो लिए। चलाओ, ड्राइव करो, चलानी चाहिए। अच्छा प्रफुल्ल जी आप बताइए, फाइनली अब आपका क्या डिसीजन है, गाड़ी को क्या करेंगे आप? हाँ जी प्रफुल्ल जी। चलाना चाहिए। अच्छा ठीक है, नाउ आई वुड लाइक टू कम टू द पॉइंट कि पता है हम जब एग्जाम देते थे या कोई कोर्स ज्वाइन करते थे या कोई भी चीज सिलेक्ट करते थे, हमारा सबसे पहला क्वेश्चन क्या होता था? टफ है कि आसान है? सबसे इजी है कि टफ है, पहले ये बता दो। अगर हमें कोई भी ऑप्शन मिले तो हम सबसे पहले ये क्वेश्चन पूछते थे, भाई सब्जेक्ट कौन सा इजी है? अगर 4 चैप्टर प्रिपेयर करना है तो भैया इजी 3 चैप्टर कौन सा है वो पहले बता दो। ऐसा होता था नहीं होता था? अगर आपके एग्जाम में ऑप्शनल आते हैं तो आपको पता है कि ये चैप्टर से आता है तो हम वो चैप्टर छोड़ ही देते, भैया इजी वाला कर लेते। सेम थिंग if our human body is made for some reason और हम उसकी यूटिलिटी नहीं ले रहे और हम अपनी बॉडी को, अपने माइंड को एज ए मर्सिडीज कार बना के गैरेज में रख रहे हैं और हमें पता ही नहीं चल रहा है। हमारी कैपेसिटी है और जब कोई और कर लेता है तो हम उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बोल देते हैं। किसी की मारुति जैन को भी बोल देते यार क्या जबरदस्त गाड़ी है। गाड़ी तो आपके पास भी अच्छी है लेकिन वो तो प्रफुल्ल जी ने तो गैरेज में रखी, क्या करें। बॉडी और माइंड आपके पास भी है लेकिन आपको अपने से इतना प्यार है कि आप उस गैरेज से बाहर ही नहीं निकाल रहे। सुबह शाम 2 अगरबत्ती भी दिखा देते हैं कि भी 2-4 एक्सक्यूजेस कि भैया सीए एग्जाम के दिन मुझे फीवर हो गया, पता है बाकी दिन सब ठीक था, फीवर हो गया इसीलिए गड़बड़ हो गई। नॉट ओनली एग्जाम, आई एम नॉट टॉकिंग, अब तो आप एग्जाम से परे हो चुके हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट यू ऑल्सो, हम एग्जाम से परे हो चुके हैं, बट इन द बिजनेस फील्ड ऑल्सो, और नॉट ओनली बिजनेस, एनी फील्ड, चाहे सोसाइटी हो, रिलेशनशिप हो, फैमिली हो, एटमोस्फियर हो, सोशल वर्क हो, पॉलिटिकल वर्क हो, बिजनेस वर्क हो, कोई भी XYZ हो,
हमारा रीजन, हम हमेशा शॉर्टकट की तरफ जाते हैं और हमेशा ये बोल देते हैं कि हमसे नहीं हो पाएगा, सामने वाले में कुछ एक्स्ट्रा टैलेंट होगा, और हम अपने माइंड को और बॉडी को गैरेज के अंदर रखते हैं। आप लोग ऐसा रखते हैं या नहीं रखते, या सिर्फ मेरा एजम्पशन है? इफ यू आर फीलिंग यू कैन गिव एक्सप्रेशन, तो आई कैन सी एवरीबडी। मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, इसका रीजन ये है, बीइंग डिसेबल आई हैव सीन समथिंग एक्स्ट्रा। मुझे पोलियो है, मैं थोड़ा सा ब्रीफ में जाती हूँ, वो एक घिसी पिटी कहानी जो सास बहू वाली होती है, एकता कपूर के सीरियल पे जैसी होती है, या फिर आजकल तो बहुत सारे सीरियल्स पे होती है। तो मुझे भी पोलियो हो गया 2 साल पे, एंड मेरा 50% बॉडी ठीक से काम नहीं करता है, मतलब मोर देन 50% बोल सकते हो आप, गवर्नमेंट रिकॉर्ड के हिसाब से तो मोर देन 50% बॉडी मेरा काम नहीं करता। मैं मुश्किल से चल लूं वो भी मेरे लिए बहुत है। टिपिकल गांव में पैदा हुई, जॉइंट फैमिली में पैदा हुई, तो और गर्ल डिस्क्रिमिनेशन भी था, फिर पोलियो इफेक्टेड था। इनिशियली बहुत सारे इवेंट में मुझे घर के मेंबर्स लेके बाहर नहीं जाते थे, अवॉइड करते थे, ये बच्ची को देखेंगे तो लोग क्या कहेंगे, ऐसा भी हुआ मेरे साथ। स्कूल का एजुकेशन भी इनिशियल प्रॉब्लम होता था, सब सोचते थे स्पेशल चाइल्ड को हम पढ़ाएंगे कैसे, हम क्या फैसिलिटीज देंगे। स्कूल एडमिशन में भी दिक्कत होता था, समहाउ स्कूल भी कंप्लीट हो गया, कॉलेज भी वहीं पढ़ लिया। एक बार मेरा सीए बनने के बारे में पता चला जब आई वाज इन कॉलेज, तो somebody जस्ट टोल्ड मी कि तुम क्या सीए बनोगी, तुम्हें पता है सीए में क्या होता है, बैंक जाना पड़ता है, पैसे गिनने पड़ते हैं, और मेरा ये अंगूठा थोड़ा काम नहीं करता था। तब मेरे दिमाग में अच्छा मैं तो पैसे नहीं गिन पाऊंगी, मैं सीए कैसे बनूंगी, और ये एक्सक्यूज से मैं रह गई उस समय। फिर कॉलेज कंप्लीट हो गया, फिर कॉलेज कंप्लीट होने के बाद ये था कि भाई लड़कियों की तो शादी होनी चाहिए, शादी नहीं हो सकती है, तो मेरी पढ़ाई बंद कर दी। आई वॉज इन हाउस फॉर 3-4 years। समहाउ उस समय पता चलता है कि भाई सीए का एग्जाम होता है और आप घर बैठ के भी दे सकते हो, जस्ट ट्रायल के लिए मैंने वो पेपर भी दिया एंट्रेंस का, और वो क्लियर हो गया। घर पे ये कंडीशन थी कि आप दे दो, गांव पे एग्जाम नहीं था, कुछ नहीं थी, कोचिंग नहीं थी, आप दे दो एग्जाम, लेकिन हम आपको कभी बाहर नहीं भेजेंगे। नहीं भेजने का रीजन है बीइंग डिसेबल है, कैसे भेज दोगे अकेली लड़की को, नहीं भेजेंगे। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, मैं एंट्रेंस तो क्लियर करती हूँ। एंट्रेंस हो गया। हमारे टाइम पे पीसीसी होता था, आई हैव गिवन इन 2008 और 9, तो पीसीसी होता था। तो पीसीसी में ये नहीं पता था कि पढ़ाई इंपॉर्टेंट है कि नहीं। एक आईटी का क्लास होता था, इन्फो का 7 days का ट्रेनिंग होती थी, कंप्यूटर ट्रेनिंग होती थी, आईटीटी ऐसा कुछ बोलते थे। तो वो कंपलसरी मतलब सिटी पे होती थी। तब मेरे फादर मम्मी ने हाँ बोला कि भैया ये तो कंपलसरी ट्रेनिंग है, आपको वहां पे जाके करना होगा। तो देन दे अलाउड कि आप हॉस्टल में जाके रहो। देन आई वेंट सिटी आउटसाइड ऑफ माय विलेज और आई स्टेड देयर, और मैंने मेरी पढ़ाई कंप्लीट की। मैंने सीए का कोचिंग वगैरह लिया, वहां पे कंप्लीट किया। व्हेन आई फर्स्ट टाइम वेंट टू ए सिटी, मैं गई थी रायपुर पढ़ने के लिए। पहली बार मैंने 5000 बच्चों को देखा, मतलब आई स्टडीड इन ए वेरी स्मॉल टाउन, तो इतने लोग मुझे कभी नहीं दिखते थे। और जब मैंने सीपीटी एग्जाम दिया तो पहली बार इतना बड़ा कैंपस देख रही हूँ, इतने सारे लोग एग्जाम दे रहे हैं, और एग्जाम का पेपर दिया, मेरा बहुत अच्छा हुआ और मुझे फील हुआ कि मेरा तो एग्जाम हो जाएगा। जैसे एग्जाम खत्म होता है, हर बच्चा एक दूसरे से पूछता है कैसा हुआ कैसा हुआ, बट मैं अकेली गई थी मेरे गाँव से, मेरा एक छोटा भाई गया था। मैंने देखा मेरे एग्जाम हॉल के बाद मुझसे कोई पूछता भी नहीं कि तुम्हारा पेपर कैसा गया। और एक बगल वाले बच्चे से या लड़के से मैंने पूछा भैया आपका कैसा हुआ, मेरा भी अच्छा हुआ। तो उसने बोला हट यहाँ से, दिस वाज द फर्स्ट लाइन, वो मुझे भी आज तक दिखता है। बोला हट यहाँ से। वो मुझे बहुत चुभा, बहुत ज्यादा दर्द हुआ, और उस इंसान पे मुझे गुस्सा नहीं आया, पर दर्द तो हुआ मुझे। तब मुझे लगा कि आज मुझे कोई सिंगल आदमी नहीं जानता, इस बड़ी सी दुनिया में एकदम अकेली हूँ। देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ माई सेल्फ, ऐसा मुझे फीलिंग हुआ। हालांकि आज उस चीजों का कोई मायने नहीं रखता है कि लोग आप पे ध्यान दे ना दे, लेकिन उस समय की एज के हिसाब से बहुत दर्द हुआ, और मुझे लगा यार कुछ करना होगा, नहीं तो पता ही नहीं चलेगा क्या हो। सीए की पढ़ाई मैंने सीरियसली की, सीए कंप्लीट हुआ। इसी चक्कर में कि मैं क्या बनूंगी, एक सीए तो मैं बन के चले जाऊंगी, लेकिन मैंने जो स्ट्रगल मेरी लाइफ में देखा, आई कैन नॉट डू एनीथिंग फॉर अदर। अगर मैं सीए बन के कंटिन्यू कर लेती हूँ, अगर अपनी ऑफिस खोल के बैठ जाती हूँ,
तब मेरे दिमाग में आया कि नहीं मुझे आगे चलना है. देन आई थॉट कि मुझे IAS बनना है. व्हेन द टाइम आई थॉट कि मुझे IAS बनना है, और जब मेरी CA का कंप्लीशन हो गया, रिजल्ट आ गया, तो हमारी GMCS की ट्रेनिंग होती थी. आप सभी की हुई होगी, कुछ 15 दिन या 20 दिन की ट्रेनिंग होती थी. दैट टाइम सब ट्रेनिंग लेते थे और मैं पढ़ाई करती रहती थी UPSC की. जब भी ब्रेक होते थे सर बोल के चले जाते थे, ट्रेनिंग में गेस्ट स्पीकर आते थे, कुछ बोल के जाते थे, और ब्रेक होता था 15 मिनट 20 मिनट, तो मैं कुछ किताबें पढ़ती रहती थी. दैट टाइम लोगों ने मुझसे पूछा, जो मेरे साथ जो थे बैचमेट से, कि भाई क्या कर रही हो. 5000 लोग पढ़ते थे मेरे साथ उस समय कोचिंग इंस्टीट्यूट में, जब मैं CA की प्रिपरेशन करती थी. एंड आई वाज द सिंगल गर्ल हु स्टार्टेड फॉर UPSC प्रिपरेशन एट माय टाइम. अजीब लग रहा था, और लोगों के दिमाग में ये था, यार इतने सारे पैकेज आ रहे हैं, कैंपस सिलेक्शन आ रहे हैं, तुम कहाँ फंस रही हो, किस चक्कर में फंस रही हो. कोई बिलीव ही नहीं करता था कि CA भी इस फील्ड में जाता है. बट मेरे दिमाग में बैठ गया था कि नहीं, जाना है. एंड आई स्टार्टेड प्रिपरेशन एंड आई वेंट फॉर दिस प्रिपरेशन, एंड मेरा एग्जैक्ट 2 साल में मैंने कंप्लीट भी कर लिया. और आई कैन नॉट से इट वाज वेरी इजी. कभी नेगेटिव थॉट नहीं आता, डिमोटिवेशन नहीं आता, डिप्रेशन यूज्ड टू कम. हमेशा ये लगता था अगर मैं इस एग्जाम में पास नहीं होंगी तो क्या होगा. मेरे बाकी बैचमेट, हम जिसको सो कॉल्ड हमारे साथी बोलते हैं, वो तो कहीं कहीं आगे निकल गए होंगे, कहाँ कहीं जॉब कर रहे होंगे, और मैं आज के आज वहीं के वहीं. ये थ्रेट हमेशा लगा रहता है, दैट इज कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जो हम हमेशा कैलकुलेट करते ही रहते हैं. इन डिफॉल्ट हमारे खून में ही है. तो बट द मोमेंट व्हेन आई क्लियर दिस एग्जाम, तो मैं तभी पता चलता है कि आई एम द फर्स्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट इन फीमेल हु कम इनटू इनकम टैक्स डिपार्टमेंट. तो ऐसा नहीं है कि सब चीज पहले से सेट है और आज कुछ नहीं हो सकता है. आप लोग भी आज कुछ फोड़ सकते हो. जो हमेशा लगता है कि हम क्या कर लेंगे, जो एक हट वर्ड था कि हट तू क्या है. और मैं ये नहीं बोलूँ कि बहुत बड़ी 30 मार खा बन गया. सिंपल सी चीज है, मैंने मेरी लाइफ में मेरे लिए डिसीजन लिया, उस पर अमल किया, उस पर आगे बढ़े और आगे निकल गए. Why I am telling all this thing to all of you is कि हमारी लाइफ में ऐसी बहुत सारी चीजें आएंगी, बहुत सारी डिसीजन आएंगे, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज आएंगे, बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे. When you have to think कि आप कर लोगे या नहीं कर लोगे, क्या हो जाएगा, मेरे अकेले से क्या हो जाएगा. बट ऑनेस्टली एक अकेले बंदे से बहुत कुछ होता है. एक छोटी सी कहानी याद आ रही है, इफ यू पीपल एग्रीड, क्योंकि ऑल आर प्रोफेशनल, ऑल आर सो मच सीनियर. मैं अपने आप को बहुत जूनियर फील कर रही हूँ आप लोगों के सामने. तो अगर आप लोग परमिशन दे तो आई वुड टेल ए कहानी. 2-4 अभी तक तो माइनॉरिटीज में ही हाथ आ रहे हैं, सब लड़कियों के हाथ आते हैं. लड़के लोग कहाँ गायब हो जाते हैं. मौलिक खंसारा जी जब तक एक्सप्रेशन नहीं देंगे, आई वोंट वर्शिप. तो मुझे डर लग रहा है उनसे देख के, क्यों बोर हो रहे हैं. ठीक है, एक कहानी याद आती है, आप लोगों ने शायद सुनी होगी. एक बार एक गांव पे एक राजा ने डिसीजन लिया कि चलो आज खीर बनाते हैं. ठीक है, अब खीर बनाते, पूरे गांव के लिए खीर बनाएंगे. तो देन दे थॉट कि भाई खीर तो बना लेंगे, दूध कहाँ से लाएंगे. तो उन्होंने कहा कि भैया ठीक है, ऐसा करते हैं, पूरे गांव वालों को बोलते हैं कि आप अपने घर से एक एक ग्लास दूध लेके आओ, ये मटकी डाली हुई है, मटकी में रख के चले जाओ. आप एक ही ग्लास दूध लेके आओ, और शाम को जब दूध जमा हो जाएगा तो हम खीर बना लेंगे. सारे गांव वाले के ग्लास लाए और उसमें मटकी में डाल के चले गए. इन द इवनिंग जब राजा ने वो मटकी खोला तो उसमें पता चला, क्या निकला उसमें, सिर्फ निकला पानी. एक सिंगल बंदे ने दूध नहीं डाला. हर बंदे के दिमाग में ये था कि सब तो दूध डालेंगे, मेरे अकेले से क्या हो जाएगा. और हर किसी की सोच यही निकली, हर किसी ने पानी डाल के चला गया, लास्ट में मटकी में सिर्फ पानी बचा. सेम थिंग हैपेंड विद अस. हम हमेशा हर चीज में, आप कुछ भी अच्छा करना चाहते हैं तो हम हमेशा ये सोचते हैं कि मेरे अकेले से क्या हो जाएगा, मैं अकेला क्या कर लूंगा. आज मैं आप लोगों के सामने जिस तरीके से बोल रही हूँ, जिस कॉन्फिडेंस से बोल रही हूँ, या कम या ज्यादा, एक ऐसा समय था जब मुझे लोग गूंगी बोला करते थे. एंड दैट वाज ट्रू. मुझे बोलना नहीं आता था, मुझे बहुत हेजिटेशन होता था.
बिंग डिसेबिलिटी, बिंग डिस्क्रिमिनेशन, मुझे लोगों का की सोच समझ में आती थी। मैं घर पे मम्मी का पल्लू पकड़ के चलती थी और मुझे लोगों को देख के डर लगता था। देन माई मदर सेड कि बेटा तुम लोगों के सामने नहीं आना चाहती मत आओ, तुम्हें डर लगता है मत करो, पर मुझे तुम्हें आगे देख के बहुत खुशी होती है। एक माँ हमेशा माँ होती है, तो उनकी हमेशा ये इच्छा थी कि कभी भी कोई भी प्रोग्राम हो तो मेरी बेटी सबसे आगे खड़ी होनी चाहिए। जस्ट बिकॉज ऑफ उनकी इच्छा कि वो अपनी बेटी को हर जगह हर कोने पे ढूंढती रहती थी, मैं धीरे धीरे अपने आप को आगे लाने की कोशिश किया। चाहे मुझे बोलना आए नहीं आए, मैं खड़े हो जाती थी। स्कूल पे, कॉलेज पे, मुझे पता मुझे नहीं होगा, पर भी मैं खड़े हो जाती थी। कि घर जाके मेरी मम्मी मुझसे पहला सवाल पूछी थी, बेटी तू कहाँ थी अगर ये प्रोग्राम हो रहा था। अगर मैंने ये बोल दिया कि मैंने कोशिश किया बोला, तो उनके चेहरे पे स्माइल आ जाता। जस्ट बिकॉज ऑफ हर स्माइल धीरे धीरे मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आया और मैं यहाँ पहुंच पाई कि आप लोग मुझे सुन पा रहे। तो एक इंसान की इच्छा कहाँ से कहाँ तक लेके जा सकती है। तो आप लोगों की इच्छा, आप लोगों की चाहत आपकी मर्सिडीज को बाहर ला सकती है, नहीं तो वो गैरेज में रह जाएगी। एंड आप आज जिस पोजीशन पे हैं, उसके लिए तो ये गाना फिट होता है कि अपनी तो जैसे तैसे कट जाएगी, आपका क्या होगा जनाबे वाली। हमारी तो जैसे तैसे कट गई, हमारे आगे आने वाले फ्यूचर का क्या होगा, क्योंकि हमारी फ्यूचर को, हम अपने आने वाले फ्यूचर को मर्सिडीज बना रहे हैं। वी आर सो मच पॉजिटिव अबाउट आवर चाइल्ड कि जरूरत से पहले उन्हें पेन, कॉपी, बैग, जो स्टेशनरी चाहिए, जो कलर पेन चाहिए वो ला के देते हैं। और एक अपना समय याद करें, जब तक एग्जाम क्लियर नहीं करोगे तो कलर पेन नहीं आएगी, बैग नहीं आएगा, 1 साल क्लियर नहीं होगा तो नया टिफिन बॉक्स नहीं आएगा। उस स्ट्रगल में आपने पढ़ा, लेकिन जरूरत से ज्यादा आप किसी चीज को किसी बच्चे को दे देते हैं तो आप उसके फ्यूचर को बिगाड़ रहे हैं। रीजन क्या है? व्हाई आई एम सेइंग लाइक दिस? मेनी टाइम पीपल यूज्ड टू आस्क मी कि कैसा लगता है आपको ये डिसेबिलिटी के साथ, आपको दुख होता है क्या, या फिर आपको तकलीफ होती है कि आपके साथ ही ऐसा क्यों हुआ। तो मुझे पर्सनली ये फील होता है, देखो जो आपकी फीलिंग है समय के साथ चेंज होती है, आपकी सोच भी समय के साथ चेंज होती है। आई एम टेलिंग माई करेंट सोच। एक समय पे शायद मैं भी रोती होंगी, एक समय में मुझे भी तकलीफ होती होगी, बट राइट नाउ जब अभी इवॉल्वमेंट के बाद मैं ये सोचती हूँ कि माई डिसेबिलिटी इज नॉट अभिशाप, माई डिसेबिलिटी इज ए वरदान। जब तक आपको एक चैलेंजेस नहीं मिलते, आपको कोई चैलेंज नहीं मिलता है, आप उसके सोल्यूशन नहीं ढूंढते। और इससे पहले एक और छोटा सा काव्या मैं बताती हूँ। अंजलि जी मेरे पास कितना समय है? आई फॉरगॉट इट टोटली, मुझे पता नहीं चलेगा। Yes ma'am, you have half an hour and कभी भी समय ओवर हो जाए या लोग बोर होए तो आप इशारा कर दीजिएगा, ठीक है? नहीं मैम, आप स्टोरिया कहती रहे, सब जागते रहेंगे, सबकी चादर खुली आई रहे। एम ऑल्सो पक्का चार्टर्ड अकाउंटेंट। मैं वन साइड लेने में बिलीव नहीं करती, भैया आप ही लोग लेते रहे और हम यहाँ बोलते रहे, ऐसा नहीं होगा। तो एग्जाम्पल लेते हैं, किससे पूछूं मैं, किसको एक पात्र चाहिए, उसके लिए कोई पात्र तैयार हो जाइए। इस बार कौन पात्र बनने के लिए रेडी है वो देखते हैं। अच्छा चलो, पहली बार मैंने मौलिक खंसारा जी को प्रोएक्टिवली देखा कि वो सबसे पहले हाथ उठाए, तो डेफिनेटली इट इज माय प्लेजर टू कॉल इट। तो मौलिक जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए। यस मौलिक जी, आप एक कंपनी के सीईओ हैं और आपको अपने कंपनी में 3 लोगों का चयन करना है, 3 लोगों का आपको सिलेक्शन करना है। फर्स्ट कैटेगरी इज पियून, सेकंड कैटेगरी इज जनरल मैनेजर, थर्ड कैटेगरी इज सीएफओ, ठीक है? नाउ आपको उनका इंटरव्यू लेना है। तो आप मुझे बताइए, पियून को आप जनरली 10,000 15,000 देंगे सैलरी? यस। और सेकंड कैटेगरी क्या थी आपकी? जनरल मैनेजर की 30-40,000 उनकी सैलरी आप रखेंगे।
एंड आप समझ लीजिए आप तो बड़े दिलदार है तो समझ लीजिए 1 लाख रुपए देते हैं एंड सीएफओ को और बड़े दिलदार है तो आपने बोला कि मैं 8 लाख रुपए 10 लाख रुपए पर मंथ दूंगा। नाउ यू हैव टू टेल कि जब आप सीएफओ की इंटरव्यू लेंगे और जब प्यून का इंटरव्यू लेंगे, दोनों इंटरव्यू में क्वेश्चन सेम रहेंगे या चेंजेस रहेंगे? चेंजेस रहेंगे। और ज्यादा इजी क्वेश्चन आप सीएफओ को पूछेंगे या प्यून को पूछेंगे? प्यून को। सीएफओ को इजी क्वेश्चन क्यों नहीं पूछेंगे? क्योंकि उसकी जिम्मेदारियां ज्यादा होगी रादर देन प्यून। अच्छा, तो यू वांट टू से कि जब आपकी जिम्मेदारी ज्यादा है और जिम्मेदारी के बदले आप उसको क्या दे रहे हैं? उसको पैसा, सैलरी दे रहे, ज्यादा दे रहे हैं या कम दे रहे हैं? ज्यादा दे रहे हैं। तो यू वांट टू से कि जब आपकी जिम्मेदारी ज्यादा है, रेस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है, तो आपके रिवार्ड्स ज्यादा होंगे। यू वांट टू से लाइक दिस? यस। और जब आपके रिवॉर्ड्स ज्यादा है तो आपके क्वेश्चन भी टफ होंगे। यस। और क्वेश्चन टफ होंगे यानी चैलेंजेस ज्यादा होंगे। यस। यू वांट टू से लाइक दिस? यस। तो यानी जब प्यून आएगा तो आप जनरल 2-4 क्वेश्चन पूछोगे, भाई टाइम पे आओगे कि नहीं, कहाँ रहते हो, कितने बजे आते हो, ये पूछोगे। यस। जब जनरल मैनेजर का इंटरव्यू लोगे तो आप 2-4 और क्वेश्चन पूछ लोगे, भाई पास्ट कहाँ नौकरी करते थे, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, काम करोगे कि नहीं। सीएफओ का इंटरव्यू जब आप लोगे तो वही आप 2-3 दिन का समय भी लोगे। यस। सारी क्वालिफिकेशन भी लोगे, अलग अलग तरीके का टेस्ट भी लोगे। और टेस्ट लेने का रीजन क्या है कि आप उनको ज्यादा रिवॉर्ड दे रहे हैं और उनके ऊपर ज्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी डाल रहे हैं। इट मीन्स जिस इंसान को बड़ा रिवॉर्ड मिलने वाला होता है उस इंसान के चैलेंजेस ज्यादा होते हैं क्योंकि उसकी ड्यूटीज भी ज्यादा होती है। सही है? ये मेरा कहना नहीं, ये मौलिक जी का कहना है, ये ऐसे सीईओ। तो विथ अस। थैंक यू मौलिक जी, मुझे आपसे यही जानना था, आपने मेरे सवालों का सही जवाब दिया या मेरे कंफ्यूजन को दूर किया। थैंक यू सो मच। कि अगर हम कहते हैं कि अगर एक कंपनी का सीईओ ऐसा सोचता है जब वो कंपनी चलाता है, तो द क्रिएटर हु मेड अस, आई एम नॉट गोइंग कि हम माइथोलॉजी पे जाए, पर जिसने हमें बनाया होगा या जो सिस्टम चला रहा होगा, जब आपको बनाया होगा तो आपकी लाइफ में जितने चैलेंजेस आ रहे हैं, अगर ज्यादा चैलेंजेस आ रहे हैं, इट मीन्स आपका रिवॉर्ड बढ़ा है, आपको रेस्पॉन्सिबिलिटी बड़ी मिलने वाली है। और आपकी लाइफ में चैलेंजेस कम आ रहे हैं, मतलब आपको रिवॉर्ड छोटा मिलेगा। शॉर्ट टाइम में वो प्यून भी खुश हो जाता होगा कि अरे यार मौलिक सर ने 5 मिनट में मुझे छोड़ दिया इंटरव्यू लेके। शॉर्ट टाइम खुशी हो सकती है और उस सीएफओ के लिए शॉर्ट टाइम तकलीफ हो सकता है, 2 दिन का इंटरव्यू स्ट्रेसफुल रहेगा, पर लॉन्ग टाइम रिवॉर्ड बहुत अच्छा है, लॉन्ग टाइम जर्नी बहुत अच्छी है। सेम विद अस कि हमारी लाइफ में जो चैलेंजेस आ रहे हैं, हमें लगता है कि बहुत बड़े चैलेंजेस है, पर आपको नहीं पता कि कोई मौलिक खंसारा आपका इंटरव्यू ले रहा है कहीं पर, because of some big reward you are going to achieve, because you are getting some big responsibility. मेरी बात से आप लोग समझ पा रहे हैं? सहमत है कि आप नहीं है सहमत? भैया देखो, सीए एग्जाम में हाँ या ना होता है, नो आंसर बोल के उसमें कोई मार्क्स नहीं मिलते। अभी तक मैंने जितने एग्जाम दिए हैं, आप लोगों ने कोई स्पेशल एग्जाम दिया होगा तो आई डोंट नो, या फिर आईसीआई ने कोई अमेंडमेंट किया हो। 2 ही चीज होता है, या तो हाँ या ना, हाँ या ना। चुप रहने वाला तो कोई आंसर नहीं होता है। और सेम व्हाट आई हैज टू फील माई सेल्फ कि भैया अगर मुझे ये पोस्ट मिली है, ये चैलेंज मिला है, इट मीन्स कोई बड़ा अपॉर्चुनिटी है, कोई बड़ा रिवॉर्ड है। क्योंकि हमको जब तक रिवॉर्ड नहीं होता सीए लोगों को, तब तक हम कुछ काम नहीं करते, तब तक अंदर से फीलिंग नहीं आती। तो जब तक हमें ये फीलिंग नहीं आती है तो हम काम नहीं कर पाते। तो सेम अगर मुझे ये लगता है कि अगर मुझे ये तकलीफ मिली, मान लेते पोलियो, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं इट इज बिग रिवॉर्ड इज देयर, और कहीं ना कहीं मैं उसकी कैपेबल होंगी या मैं उसके लिए सुटेबल होंगी, इसलिए मुझे इस पर्टिकुलर काम के लिए चुना गया। दिस इज अ पोस्ट ओनली, दिस इज नॉट अ डिजीज फॉर मी। सेम विथ एवरीबडी। अगर आप भी अपने लाइफ में ये सोच लें, मैं आप लोगों को एक लास्ट चीज बताना चाहती हूँ। मतलब आई कैन सी एवरीबडी समवेयर बिजी और डूइंग सम वर्क, बट एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ। 2 चीजें तो मैं भी अपने आप को ये फील करती हूँ कि कहीं ना कहीं मैं इस चीज के लिए लायक होंगे तभी मुझे मिला, अदरवाइज ये मुझे पोस्ट नहीं मिलती। मैं जब सीए की प्रिपरेशन करती थी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एवरीबडी मस्ट लिसन इट, 2 मिनट का ब्रेक लेके, कि जब मैं सीए का प्रिपरेशन करती थी
बहुत स्ट्रेस होता था। और मेरा आधा से अधिक दिमाग ये कहता था भैया ऐसा कोई मेडिसिन हो, खा ले और चीजें भूले ही नहीं, एक बार पढ़ लूं और कल तक भूलूं ना, एग्जाम तक नहीं भूलूं, ऐसी कोई मेडिसिन आ जाए। कोई मेडिसिन नहीं मिलती थी उस समय। तब कोई मार्केट में कोई एक टीचर आए या सेमिनार या वेबिनार जैसा हुआ, माइंड को जीनियस बना देगा, आपके माइंड को स्ट्रांग बना देगा, ऐसा कुछ था उनका नाम। और मैंने भी सोचा भाई लालच में एग्जाम देना है, मुझे भी अपने माइंड को स्ट्रांग बनाना है, मैंने वो सेमिनार अटेंड कर लिया। और दैट वाज अराउंड 3000 रुपीज। मैं 2011 की बात बता रही हूँ। 3000 रुपए देके मैंने 3 दिन का उसका सेमिनार अटेंड किया। और अटेंड करते समय अंदर से इतना रोना आता था कि यार मेरे 3000 रुपए वेस्ट हो गए। मैंने इसकी बातें सुनने के लिए 3000 वेस्ट किया, मेरा दिमाग तो कुछ बढ़ा नहीं और मेरे 3000 रुपए चलेगा। मैं हमेशा वो पैसे कैलकुलेट करती थी, पर सीए की क्वालिफिकेशन पहले से आ गई थी कि भैया पैसा इन्वेस्ट किया है तो वसूल पक्का करना है। अब वो जो जो बोल रहे हैं वो मेरे लिए 3000 रुपए। अब मुझे पता था कि आज ये जो बोलेगा मैं कल भूल जाऊंगी, मेरे दिमाग में मुझे पूरा यकीन होता था। तो मैंने क्या किया, पेपर पेन निकाला, उसकी हर बातों को लिख लिया, हर बातों को, कि भैया ये 3000 रुपए की बातें लिख रही हूँ और मैं लिख लेती हूँ, कम से कम घर तो ये लेके जाऊंगी। और मैंने उसकी हर बात को लिख लिया और हर एग्जाम से पहले उसको मैं पढ़ लेती थी जाने से पहले। वे 3000 रुपए की बातें, कम से कम पैसा तो वसूल होना चाहिए, एग्जाम में पास हो या दिमाग बढ़े कर नहीं बढ़े। उसने कहीं ना कहीं एक बात बोली थी तो 3000 की बातों में कि आप मेरी बातें फॉलो करोगे तो एक दिन आईएएस पक्का बन जाओगे, आईएएस जितना ब्रिलियंट दिमाग हो जाएगा। अटेंड करने के बाद मुझे कभी नहीं लगा कि मेरा दिमाग ब्रिलियंट हो गया, पर उसने ये कह दिया था कि ये सेमिनार अटेंड करोगे तो आपका दिमाग आईएएस जितना हो जाएगा। और ज्यादा कुछ याद नहीं है क्योंकि मैंने वो कॉपी खो दी, पर एक कहानी मुझे आज तक याद है। इफ यू वांट वो 3000 रुपए की कहानी सुनाने के लिए केयरफुली सुनोगे तो आई वुड टेल यू, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट और रियल कहानी है। लेकिन जो कैमरा ऑफ करेगा मैं उसको यहाँ से ऑफलाइन कर दूंगी। कितने कैमरे चालू होते हैं मैं देखती हूँ, ठीक है। हम हमारी लाइफ में ऐसा बहुत बार होता है, अपने दोस्तों को, आसपास के लोगों को, अगर आप कैमरा चालू करोगे तो आप इस कहानी का ज्यादा फायदा उठा पाओगे, 3000 का 30,000 बना पाओगे। पैसे के बिना तो आपकी बत्ती नहीं हिलती है, चाहे जो हो जाए, है कि नहीं। हिरल प्रजापति जी आप उड़ीसा से हैं? अनम्यूट कीजिए। मैं आनंद से हूँ। आनंद से, ओके, क्योंकि जनरली ओके, तो दूध बहुत पीते होंगे आप। क्या? बहुत बार? आई सेड कि मिल्क बहुत पीते होंगे वहां पे आनंद में। हाँ, वो तो सबको पिलाते हैं ना। तो ठीक है, हम अपनी कहानी पे आते हैं, 3000 रुपए की कहानी पे। हमारे साथ ऐसा बहुत बार होता है कि हम कहानी के और एक और बैकग्राउंड पे जाते हैं। पहले शुरू से सुनाते हैं, थोड़े बच्चे टाइप की लगेगी, थोड़ा मैथोलॉजिकल भी लगेगा, फिर भी बहुत इंपॉर्टेंट है सुनने के लिए। एक बार ऐसा होता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश को हम लोग मानते हैं ना, सृजन करता है, पालन हरता है और विनाश करता है। सब तीन देवता थे। वो खेलते खेलते सोचते यार हम बोर हो रहे हैं, क्या करें, टाइम पास कैसे करें, तो उन्होंने पृथ्वी बना दी। अब पृथ्वी बनाने से भी टाइम पास नहीं हो रहा था, उन्होंने कुछ इंसान बना दिए। भाई चलो कुछ काम हो जाएगा, हम कुछ काम कर लेते हैं, उनको बनाते हैं। कुछ इंसान बना दिए और उन्होंने वहां पे भगवान की पोस्टिंग कर दी पृथ्वी पे कि भाई आप ये कुछ लोग हैं, इंसान है, ह्यूमन बींग्स है, आपकी ड्यूटी है इन ह्यूमन बींग्स की टेक केयर करना। और आपकी ड्यूटी का टाइम रहेगा 10 बजे जाना, सीए के जैसे 6 बजे घर आ जाना। हालांकि आप लोग 10 क्या रात तक काम करते रहते हैं, तो 10 बजे जाना और 6 बजे घर आ जाना, और आपको कुछ नहीं करना है। लोग आपके पास आएंगे, अपनी समस्या बताएंगे, आपको अपनी समस्या को सुन के तथास्तु बोलना और ठीक कर देना, और जो जैसा चाहता है उसको वैसा बना देना। कि हिरल जी आके बोले कि मुझे करोड़पति बनाना है, तो भगवान ने बोला तथास्तु, सेकंड डे वो करोड़पति बन जाएंगे। तो हर कोई जो जैसा चाहता था
भगवान तथास्तु बोल के उसे बना देते थे। धीरे धीरे पॉपुलेशन बढ़ी, ग्रोथ रेट भी बहुत ज्यादा था, पॉपुलेशन बढ़ी। विष्णु ने 2 भगवान की पोस्टिंग कर दी। धीरे धीरे पॉपुलेशन और बढ़ी तो 3 भगवान की पोस्टिंग कर दी, 4 कर दी, 5 कर दी, 6 कर दी, और पॉपुलेशन बढ़ती रही। ऐसे 36 करोड़ देवी देवताओं की पोस्टिंग हो गई पृथ्वी पे। पर धीरे धीरे इंसान भी इवॉल्व हुआ, जैसे जैसे डिमांड पूरी हुई और डिमांड बढ़ती रही और नए नए टाइप की डिमांड आ गई। जैसे अंकुर गोयल जी की डिमांड थी, मेरा वाईफाई का कनेक्शन ठीक नहीं आ रहा, मेरा डाटा ठीक से नहीं चल रहा है, मेरी बीवी मायके नहीं जा रही है, मेरी गर्लफ्रेंड बात नहीं मान रही। इस टाइप की नई नई टाइप की डिमांड्स आने लगे और 36 करोड़ देवी देवता तथास्तु बोल बोल के थक जाते, लेकिन डिमांड नहीं खत्म होती थी। तब विष्णु भगवान ने कहा, भैया ऐसा करो, तुम ओवर टाइम करो, मैं ओवर टाइम का पेमेंट कर दूंगा। आप सुबह 6 बजे जाओ और रात को 10 बजे। जो 10 बजे जाके 6 बजे आते थे, आप सुबह मॉर्निंग में 6 बजे जाओ और रात को 10 बजे वापस आओ। तब भी लोगों की डिमांड खत्म नहीं हुई। 36 करोड़ देवी देवता डिसाइड करते हैं, भगवान अब हम पृथ्वी पे नहीं रहेंगे, इन लोगों की डिमांड हम कभी खत्म नहीं कर सकते, अनलिमिटेड है, आप हमको कहीं छुपा दो। तो दिस पीपल स्टार्टेड थिंकिंग कि भाई हम जाके पहाड़ों में छुप जाते हैं। तो इंसान जाके अमरनाथ वहां पे भी जाके ढूंढ लिया, वैष्णो देवी वहां जाके ढूंढ लेते हैं। फिर सोचते कि हम पानी के अंदर द्वारिका में छुप जाते हैं, तो भगवान को ढूंढते ढूंढते इंसान वहां भी पहुंच जाते हैं। 36 करोड़ देवी देवता फाइनली पृथ्वी छोड़ के विष्णु भगवान के पास जाते कि भगवान हम लोगों की इच्छा पूरी नहीं कर सकते, आप हमारे लिए कोई और प्लेस बना दो। विष्णु भगवान बोलते कि मेरे पास इतने लोगों के लिए तो रहने के लिए कोई जगह नहीं है, रहना तो आपको पृथ्वी में पड़ेगा, पर एक ऐसी सेफ जगह बताता हूँ, आप वहां रहना, इंसान आपको ढूंढेगा नहीं और आप आराम से रहना। अगर बाई चांस इंसान ने आपको ढूंढ लिया तो आप उसको तथास्तु बोल देना और उसकी इच्छा पूरी कर देना। 36 करोड़ देवी देवता एकदम रेडी हो गए, भैया आप छुपा दो, ऐसी कोई जगह है तो। फिर भी इंसान ढूंढ लेगा, वैसे भी ढूंढेगा नहीं, पैसे के पीछे ज्यादा भागते हैं। बाई चांस उसने मुझे ढूंढ लिया तो हम उसकी इच्छा पूरी कर देंगे। भगवान भी खुश, विष्णु भगवान भी खुश और 36 करोड़ देवी देवता भी खुश, और उन्होंने उनको छुपा दिया। कैन एनीबडी टेल कि उनको कहाँ छुपाया गया? जस्ट थिंक इज ए स्टोरी, नॉट गो टू द धर्म हिंदू मुस्लिम में बच जाना। जस्ट थिंक एज ए स्टोरी कि उनको कहाँ छुपाया गया होगा। हर इंसान के अंदर ही छुपा दिया, हार्ट में, हार्ट पे छुपा दिया, इंसान के अंदर छुपा दिया, मन में छुपा दिया, दिल में छुपा दिया, कहीं भी बोल दीजिए। किसी की गर्लफ्रेंड में छुपा दिया, ऐसा भी बोल देंगे। धीरे धीरे लगता है ना, तुझ में रब दिखता है, मैं क्या करूं, ऐसा भी गाना बना। तो फाइनली उनको छुपा दिया गया। लेकिन कंडीशन क्या थी छुपाने की? जब इंसान आपसे कुछ मांगेगा तो आपको देना पड़ेगा। अब इंसान तो कितना सेल्फ डिग्नेटरी होता है, स्वाभिमानी होता है, कभी ऐसे हाथ मांग के थोड़ी ना मांगता है, मन में ही मांग लेता है। कभी ऐसे किसी से आप मांगने जाते हो कटोरा लेके नहीं जाते ना कि भाई मुझे दे दे। अपने फादर मदर को मांगने के लिए हमें शर्म आती है, तो हम किसी और से मांगने जाएंगे, हमारा खुददार है तो हम अपने मन से ही मांगते। पर भगवान की ड्यूटी अगर मन से भी मांगेंगे तो मिलेगा। आपने कभी सोचा है, आप अपने दोस्त को बोलते हो ना, मैंने बोला था, मैं तो पहले से ही बोलता था, ऐसा ही मैं बोला था, देख हुआ कि नहीं। हमारी बोली हुई बातें सही हो जाती है, होती है। कभी किसी के साथ ये इंसिडेंस हुआ है, आप बोलते हो और वैसा ही हो जाता है। किसी के साथ हुआ ऐसा? अंजलि जी, हुआ है आपके साथ ऐसा? हुआ है। मीरा शाह जी, आपके साथ ऐसा हुआ है? आप बोलते हो और सच हो जाता है। हुआ है, आपके साथ भी हुआ है। और मर्सिडीज वाले भाई साहब प्रफुल्ल जी, आपके साथ ऐसा हुआ है कभी? आपके साथ भी हो। इट मीन्स हर इंसान के साथ कभी ना कभी इंसिडेंट्स ऐसे हुए हैं, आप बोलते हो और वो सच हो जाता है। बट यू नेवर थॉट कि ऐसा एक बार क्यों हुआ। आपको अगर आप सेल्फ एनालाइज करेंगे, वो हर बार होता है, पर हमें पता नहीं चलता है। हम जाने अनजाने में हमेशा 2 चीजें भी मांग लेते हैं। आपको चिट भी चाहिए, पट भी चाहिए, रुपए का ये पहलू भी चाहिए, वो पहलू भी चाहिए। भगवान भी क्या करे, वो भगवान भी तो इंसान ही होगा कहीं ना कहीं। आपको एक ही तरफ दे सकता है। आपको बीवी भी चाहिए, घर वाली भी चाहिए, बाहर वाली भी चाहिए, ऐसे नहीं दे सकता है। आपको एक चीज लेना पड़ेगा। लेकिन हम कहीं ना कहीं नेगेटिव चीजें भी बोलते हैं, पॉजिटिव चीजें भी बोलते हैं। मेरा बच्चा तो गधा है, मेरा बच्चा तो बेवकूफ है, मुझसे तो याद ही नहीं होता, मुझसे ये काम हो ही नहीं सकता, मैं कर ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। हम कहीं ना कहीं ये बोल के एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हम नहीं कर सकते, और अंदर से आवाज आती है तथास्तु। अगर एक बनाई हुई
बनाई हुई स्टोरी को, ये स्टोरी मेरे वो 3000 वाले टीचर ने सुनाई थी और जो मैंने एक्सेप्ट कर ली, क्योंकि मेरे साथ ऐसा बहुत बार होता था बिफोर लिसनिंग दैट स्टोरी कि हम सोचते थे और वो चीजें अपने आप कहीं ना कहीं से आ जाती है। मुझे नहीं पता चलता था कि ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है, कि मैं चाहती हूँ वो चीज मुझे मिल रही है, देर सवेर मिल रही है, इमीडिएटली नहीं मिली पर मिल रही है, और जो पहले इम्पॉसिबल लगती थी। इट मीन्स देयर इज समबडी हु इज टेकिंग केयर ऑफ यू। ये स्टोरी को मैं अपनी एक नई स्टोरी, एक इल्यूजन से मैच करती हूँ। और आपने द लॉ ऑफ सीक्रेट पढ़ा, द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। द लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये कहता है, या उसको थोड़ा चेंज करके बताएं, जब क्रिएटर ने आपको बनाया द सेम टाइम, ये कहानी को छोड़ के एक बार आपको सोचते एज ए ह्यूमन बीइंग आप अपनी लाइफ में क्या बनाते हैं एक्स्ट्रा, जो सिर्फ आपका कंट्रीब्यूशन होता है, जिसमें आपने बनाया है। ऐसा क्या चीज होती है जो आपने बनाया है? कोई बता सकता है जिसमें सिर्फ आपका कंट्रीब्यूशन है? नॉट फैक्ट्री, नॉट रोड, नॉट कार, नॉट बिल्डिंग। ऐसी क्या चीज है जो आप बनाते हैं? थॉट्स। सॉरी, आवर थॉट्स जो विजिबल हो। जो विजिबल। ऐसी क्या चीज है जो आपने, क्या चीज होती है आप ऐसे क्या क्रिएट करते? बताइए बताइए। बेबी, बच्चा। एग्री? आप बिंग मदर या फादर एक बार इमेजिन कीजिए, अगर आपका कोई बेबी, आपका बच्चा है और आपसे वो कुछ चाहता है, आप उसकी इच्छा पूरी करेंगे या नहीं करेंगे? आपकी जितनी कैपेबिलिटी उतनी करेंगे या नहीं करेंगे? और अगर आपकी कैपेबिलिटी नहीं हो तो कोशिश करेंगे कि उसकी इच्छा जरूर पूरी हो। आज नहीं हो, देर से हो, पर जरूर से हो। आपके लिमिट में होगा तो आप जरूर करेंगे। लेकिन अगर उसकी वो इच्छा आज पूरी करने से उसका नुकसान है तो आप उसको देंगे क्या? आप मुझे बताइए। आपको पता है कि वो बच्चा मांग रहा है आपसे कुछ, चॉकलेट मांग रहा है, फॉर एग्जाम्पल 4 साल का बच्चा आपसे 2 चॉकलेट मांग रहा है, आप उसे 2 चॉकलेट देंगे, लेकिन नॉट आज, क्योंकि आज उसकी कैपेबिलिटी नहीं है। जब वो बड़ा हो जाएगा, उसके दांत कैपेबल होंगे, आप उसको देंगे। मतलब बीइंग पेरेंट्स, आप एक बच्चे के फादर मदर होने के कारण अपनी बनाई हुई कृति, अपनी बनाई हुई क्रिएशन की हर इच्छा को पूरी करते हैं। तो जिस क्रिएशन ने हमें बनाया है वो हमारी इच्छा पूरी नहीं कर रहा होगा। एक इल्यूजन स्टोरी बनाए, द मोमेंट वी टेक बर्थ इन दिस लाइफ, इन दिस वर्ल्ड, सेम टाइम पे, ये मैं पर्सनल थ्योरी जो मैं बिलीव करती हूँ, सेम टाइम पे सेम टाइप का क्रिएशन किसी और ग्रह में होता है। एग्जाम्पल लेते हैं, और जो जो हमारी इच्छा है, जो हमारी इच्छा है उस ग्रह में एज इट इज वो बनते जाती है। हमारे क्रिएटर की एक ड्यूटी होती है अंदर से कि इस बच्चे की जो इच्छा है मैं उसको पहुंचा दूं, उस ग्रह से इस ग्रह ला दूं। द मोमेंट प्रफुल्ल जी सोचते हैं कि मुझे मर्सिडीज चाहिए, भले वो सीए बन के कमाएंगे, लेकिन द मोमेंट वो सोचते हैं वो मर्सिडीज इमीडिएटली वहां एज इट इज बन जाती है उस ग्रह से। और उस क्रिएटर की हमेशा इच्छा होती है उस ग्रह से इस ग्रह तक भेजने की, पर उस ग्रह से इस ग्रह में आने के लिए सिर्फ एक तार होती, सिंगल तार, वो है आपकी थॉट प्रोसेस, आपकी पॉजिटिव थिंकिंग और कंटिन्यूअस हार्ड वर्क। और वो इतनी पतली तार होती है कि द मोमेंट आप उसमें थोड़ी भी नेगेटिव थॉट लाते हैं वो टूट जाती है और वो इच्छा कभी आप तक पहुंच नहीं पाती। अगर ये थ्योरी पे आप बिलीव करके चलें कि मैं सोचता हूं मुझे क्यों ना, और दिस थ्योरी ओनली एप्लीकेबल फॉर द गुड थिंग, अगर मैं सोचता हूं मुझे क्यों ना मिलेगी, द मोमेंट आप सोचोगे वो क्रिएट होगी और आप तक पहुंचेगी जब आप उसे पॉजिटिव थॉट से और हार्डवर्क से, सिर्फ मुझे मर्सिडीज चाहिए से मर्सिडीज नहीं मिलेगी, उसके लिए आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा, पढ़ाई करनी पड़ेगी, जॉब करनी पड़ेगी, उसके बाद वो इमीडिएटली आप तक पहुंच जाएगी। और दिस इज द फुल प्रूफ थ्योरी। अगर आज भी आप अप्लाई करते हैं, डेफिनेटली विल गेट द रिजल्ट। हमने बहुत बार सुना है अपनी लाइफ पे कि मेरा नसीब खराब है, मेरे लक में ही नहीं है, मेरा बैड लक चल रहा है, आज मेरा दिन खराब है।
आप 2 भाई हो और आपके मम्मी पापा उठते ही आपके बड़े भाई को अच्छा और आपको छोटे वाले को बुरा बोलते हैं, रोज सुन के बुरा सुन के आप एक्चुअल में बुरे हो जाएंगे। रोज हम अपनी किस्मत को, लाइफ को, दिन को, समय को कोस के हम उसे बुरा बना देते हैं। पहली बात, इसे रोकना। बीइंग प्रोफेशनल, यू शुड नॉट डू दिस थिंग, आपको शोभा ही नहीं देता। सेकेंड थिंग, फिर भी आप बिलीव करते हो कि चलो कुछ बुरा चल रहा है, तो लाइफ में एक ऐसी चीज है जो आपके भाग्य को बदल सकती है। हम हमेशा कहते हैं कि हाथों की लकीरों में जो लिखा है वो होके ही रहेगा, किस्मत में जो लिखा है वो मिलके ही रहेगा, वो कभी चेंज नहीं होता। पर एक चीज आपकी किस्मत को बदल सकती है, एक चीज जो आपके भाग्य को बदल सकता है, दैट इज द गुड थिंग, गुड वर्क। अगर आपने अच्छा काम किया, डेफिनेटली यू विल रियलाइज कि आपकी लकीरें चेंज हो रही। लेकिन अगर आपसे अच्छा काम नहीं हो रहा है तो अच्छा सोचिए, अच्छी सोच भी रखेंगे तो डेफिनेटली यू विल चेंज द लाइफ। आपकी इसी लाइफ को, इसी को जिसको आप नरक सोचते हैं, वो स्वर्ग में बदलेगा आपके सामने। बट दैट अच्छा होना आपके माइंड सेट में जरूरी है। आप अपने लिए अच्छा नहीं कर पा रहे, किसी और के लिए भी अच्छा सोचेंगे, आपको अच्छा मिलेगा। और उस दिन आपको रियलाइज होगा कि जो एक जो नेगेटिव चीजें आपके साथ हो रही है उसका रीजन क्या है। हर चीज को कोरिलेट कर पाएंगे। जिस तरीके से आप डेबिट को क्रेडिट से कोरिलेट कर पाते हैं, आप रेस्पेक्टिव इनकम को रेस्पेक्टिव हेड से कोरिलेट कर पा रहे हैं, इस चीज को भी आप कोरिलेट कर लोगे जिस दिन ये बारीकी से आप थोड़ा सा ध्यान दोगे। एवरीथिंग इज कोरिलेटेड। हर एक्शन का रिएक्शन है, हर थॉट का इफेक्ट है। आपकी अच्छी थॉट का आपको अच्छा इफेक्ट मिलेगा। हो सकता है समय, क्योंकि आपके क्रिएटर ने कुछ और समय सोचा होगा, दिस इज द बेस्ट, और जो उसने सोचा होगा द बेस्ट ही सोचेगा। जिस तरीके से आप अपने बच्चे के लिए बुरा नहीं सोच सकते, हमारे लिए कोई और बुरा नहीं सोच सकता। वी हैव टू जस्ट हैव सम पेशेंस। बिफोर प्रोसीडिंग समथिंग मोर, I would like to ask people if you have anything to share, if you have anything to ask, if you have anything in query, something is there, or if you want to give some feedback, so I will also get back something from you. क्योंकि मैं भी सी हूँ। Anybody would like to ask something and would like to share some incident, something? अच्छा लगेगा मुझे भी। आप अपने मेहमान का भी खातिरदारी कीजिए सही से। अब पॉसिबल नहीं कि आप आनंद बुला के दूध पिलाएं वहां पे, अब तो पॉसिबल नहीं है इस कोरोना पीरियड पे, तो आप वर्चुअली खुश करके दिखाइए। Nobody has some question? Nobody has any question? No query? No feedback? अवनी त्रिपाठी जी has raised, unmute कीजिए अवनी जी अपने आप को। Yes ma'am, good evening ma'am. हाँ जी अवनी जी बताइए। मैम आपने जैसे बोला कि सीए होने के बाद मैंने सोचा कि जो मैंने स्ट्रगल की है तो मैं सिर्फ सीए बन के रुक जाऊंगी तो सर्व नहीं कर पाऊंगी लोगों की, कुछ हेल्प नहीं कर पाऊंगी। तो आपका कोई ऐसा इंसिडेंट आप शेयर कर सकते कि जो आपको लगा कि सीए अगर वहां पे मैं रुक जाती तो ये नहीं हो पाता, ये प्लेजर या ये सिर्फ ये जो आगे मैंने बढ़ने का सोचा उसी वजह से, या फिर दूसरों की लाइफ में कंट्रीब्यूट करने से ही मुझे मिला है जो अदरवाइज मैं नहीं कर सकता। ऐसा कोई इंसिडेंट आपका हो तो आप शेयर करोगे? इंसिडेंट्स आपके सामने है। अगर सिर्फ मैं एक सीए होती और मैं कहीं ना कहीं अपने गांव पे जाके प्रैक्टिस करती या कोई ऑफिस खोल लेती या बैठ के काम करती, वर्क फ्रॉम होम करती, आप लोग मुझे नहीं बुलाते। एटलीस्ट आईसीआई अहमदाबाद तो मुझे इनवाइट नहीं करता यहाँ, क्योंकि मैंने ये डिसीजन लिया कि मुझे सर्विस में जाना है। सिर्फ मेरे सर्विस जाने के कारण भी आईसीआई अहमदाबाद ने नहीं बुलाई। व्हाई दे हैव कॉल्ड मी? क्योंकि बनने के बाद मैंने 2 जॉब लिया मेरे हाथ में। पहला जॉब मेरी ड्यूटी जो मुझे गवर्नमेंट ने असाइन की है। सेकंड, जो स्ट्रगल जो तकलीफ मैंने सही है, हाउ कुड आई कंट्रीब्यूट टू द सोसाइटी। लोग जनरली सोशल वर्क को एट द एंड ऑफ द लाइफ सोचते हैं कि मैं पैसे कमा लूंगा, ये हो जाएगा, उसके बाद में जो एक्स्ट्रा बचेगा। डोनेशन को हमेशा एक सोशल वर्क को मानते हैं। मैंने श्रमदान को माना कि अगर मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा समय मिलता है या मैं समय निकाल के एक आदमी को भी अपने लाइफ से मोटिवेट कर दूं किसी भी तरीके से, तो आई विल थिंक कि मेरी लाइफ सक्सेसफुल हुई। मेरे अंदर वो टैग नहीं लगेगा कि हम बस पैदा हुए, खाए पिए और चल दिए।
उस टैग के कारण आई यूज्ड टू कम ऑन सोशल प्लेटफॉर्म, आई यूज्ड टू गो, आई यूज्ड टू विजिट मेनी प्लेसेस, आई यूज्ड टू टॉक विद द चिल्ड्रन, आई यूज्ड टू टॉक विद एवरीबडी। उस कारण से आज मुझे यहाँ बुला पाए। तो मेरे ख्याल से ये इंसिडेंट समझ में आएगा अवनी जी आपको। राइट। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू अवनी जी। एनीबडी एल्स? हाय सारिका जी। या आई वांट टू आस्क, आपने जैसे बताया कि सीए की आपकी जब एग्जाम आप देख के आए थे तो somebody said you hurt. I think there may be many other incidents in your life, and शायद हम लोगों की लाइफ में भी ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं in other way. So I just want to know from you at that time or any other moments, आप ऐसा क्या, what was that motivating factor जो आपको वो सब छोड़ के आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करता था? मेरा मोटिवेटिंग फैक्टर ये है कि जब मैं प्रिपरेशन करती थी, जब मैंने स्ट्रगल किया और जब मैंने एग्जाम दिया, पढ़ाई की, तो मेरे अंदर ये फीलिंग नहीं थी कि मेरे में कुछ कमी है, कभी भी नहीं। सफरिंग होता था, तकलीफ होती थी, आप विजिबिलिटी देख सकते थे, आप कोई काम जल्दी 5 मिनट में करते हो तो मुझे 30 मिनट लगता होगा, आप सीढ़ी 2 मिनट में चढ़ लेते थे तो मुझे 15 मिनट लगता होगा। मैं सीए की कोचिंग जहाँ करती थी तो वो था 3rd फ्लोर पे, और ऐसा होता था कि जल्दी जाओ जल्दी सीट मिलेगी, तो सब एक साथ जाते थे, तो मैं तो सबसे लेट में पहुंचती थी, तो मैं हमेशा धीरे धीरे चढ़ के जाती थी सीढ़ी पे। तो आई यूज्ड टू रिक्वेस्ट माय फ्रेंड्स कि भैया मेरे लिए एक सीट रख देना, मैं धीरे धीरे जाऊंगी। और ये सारी चीजें देखने को मिलती थी, हुई थी, पर ये मेरे को अंदर से फील नहीं होता था कि मैं नहीं कर सकती, तो मेरे को मेरे माइंड पे बहुत भरोसा था, मेरे विल पावर पे बहुत भरोसा था। और जब भरोसा था तब मुझे विल पावर का मतलब क्या होता तब नहीं पता था। तब मुझे ये लगता था कि मुझे अपॉर्चुनिटी मिली थी, क्योंकि हमें अपॉर्चुनिटी की इतने संघर्षपूर्ण तरीके से मिली थी कि उस समय ये सब सोचने में हम टाइम वेस्ट नहीं कर सकते थे। आज हमारे लाइफ को हमें 70, 80, 90 साल मिला है, हम मनुष्य जीवन को बहुत कम समय मिला है। एक आपके जीव को 80 साल का बहुत छोटा समय मिला है, ह्यूमन लाइफ, बट उसमें हम राग, देश, घृणा, पाप, क्रोध, एंग्री, हेजिटेशन, डिस्क्रिमिनेशन, तकलीफ, कंपटीशन, इसमें गुजार देते हैं। जबकि मेरे लाइफ का मोटो है कि ये सारी चीजें को हटा के मैं क्या करूं, और टू अपग्रेड माई सेल्फ। दिस इज नॉट माई मोटो कि मैं खाली बैंक बैलेंस बढ़ा के चल दूं। मैं आज तो आपके पास अपने नोटों की गड्डी लेके नहीं आई कि मेरे अकाउंट पे क्या है। नोबडी इज एबल टू सी, एंड एवरीबडी कैन सी यू ओनली, योर कैपेबिलिटी। rather thinking to go for economy, always think कि आपके अंदर क्या अपग्रेडेशन है एज ए ह्यूमन बीइंग। आज आपके पास कुछ भी नहीं आपके घर पे, तो आप क्या रिप्रेजेंट कर रहे हो। तो जब मैं प्रिपरेशन करती थी तब मेरे दिमाग में ये नहीं था कि मेरे में क्या कमी है, तकलीफ होती थी। द मोमेंट आई गॉट थ्रू दिस एग्जाम, जब मेरे यहाँ मीडिया की लाइन लग गई, तब मुझे पता चला कि हाँ है ये तकलीफें हमने सही है और ये तकलीफें हैं। क्योंकि जब हमने सही उसको एक्सेप्ट किया, हाँ भैया ऐसे ही होता है। आज मुझे किसी से कोई कंप्लेन नहीं कि उस बंदे ने मुझे ऐसा बोला, मुझे पढ़ने नहीं दिया, क्योंकि वो माहौल था, वो सबके साथ था, मेरे साथ अकेले के लिए नहीं था। मैंने उसको एज इट इज एक्सेप्ट किया। आज भी ऐसा नहीं है कि लोग बहुत अच्छे हो गए, आज मेरे साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा है। मेरे साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा है इसका मतलब ये नहीं कि लोग चेंज हो गए। जस्ट बिकॉज आज एक ओहदे पे पहुंच गए, आज एक डेजिग्नेशन पे पहुंच गए, एक पोजीशन पे पहुंच गए, तो लोग आज ऐसे आपको डिसेबल नहीं देखते, दे आर लुकिंग समथिंग एल्स। आप भी पहुंच जाओगे, आपको भी देखेंगे। एक और चीज, बीइंग डिसेबल एक मेरी ड्यूटी होती है कि अवेयरनेस भी फैलाएं। लोग हमेशा ये सोचते हैं कि डिसेबल लोग है। किसी ने तो मुझे मेरे फेस पे भी बोला था कि जब मैं किसी डिसेबल को देखता हूँ, किसी का हाथ नहीं है, पैर नहीं है, आंख मुड़ी हुई है, ऐसी है, तो थोड़ा अजीब लगता है, उसके साथ बैठने का मन नहीं करता है। और उसने तो मुंह पे बोल दिया, आप लोग तो करते भी होंगे, मैं भी करती होंगे। वी ऑलवेज वांट टू मेक फ्रेंड विथ आवर लेवल, जिसके साथ हम कंफर्ट हो, जिसके साथ हम चल पाए, जिसके साथ हम एंजॉय कर पाए। ऐसा बंदा जिसमें कहीं से भी कोई कमी हो, रंग का कम हो, कलर कुछ कम हो, फिटनेस को, हम उसको हटा देते हैं, हम उसके साथ जाते नहीं, उससे बात ही नहीं करते। बट हम एक चीज भूल जाते हैं, स्पेशली फॉर डिसेबिलिटी। डिसेबिलिटी इज नॉट विद अ पर्टिकुलर पर्सन, एक इंसान के साथ नहीं है, ये हर इंसान के साथ होती है, अलग अलग स्टेज पे आती है। एग्जाम्पल, व्हाट इज डिसेबिलिटी? डिसेबिलिटी मीन्स आप
एक चीज को नॉर्मल तरीके से नहीं कर पा रहे हैं, आपको उसके लिए कुछ अलग तरीका यूज करना पड़ता है, फैसिलिटीज यूज करनी पड़ती है. लाइक इफ somebody is not able to walk, that person needs to use some wheelchair or support something. तो ऐसी ऐसी चीजें, ऐसी अवस्था हर इंसान की लाइफ में आती है. जब एक माँ प्रेग्नेंट होती है, she is also kind of disabled. She also needs some extra facilities. जब एक बाप, एक पिता एक बच्चे को कैरी करता है, जब एक छोटा बच्चा रेंगता है, जब बुढ़ापा आ जाता है, आपने देखा होगा बुढ़ापा में हर इंसान की रीढ़ की हड्डी धीरे धीरे मुड़ने लग जाती है, स्टिक पे आ जाते हैं, बुढ़ापा आ जाता है, मोटापा आ जाता है, कोई बीमारी आ जाती है, अचानक पैर भारी हो गए, पैर में कुछ हो गया, कोई भी XYZ प्रॉब्लम हो गई, स्टमक में इश्यू हो गया, इंजरी हो गई, स्पाइन में प्रॉब्लम हो गया, कभी एक्सीडेंट हो गया. These are the normal phase where each and every person has to travel. बट वो क्या सोचता है कि भैया मैं नॉर्मल हूं और ये कैटेगरी अलग है. और जब वो कैटेगरी, जब वो नॉर्मल कैटेगरी इस एबनॉर्मल कैटेगरी में आता है, जब रियलिटी में वो घबरा जाता है. भैया तुम तो बचपन से डिसेबल हो, तुम्हारे लिए तो जिंदगी आसान है, मैं तो अभी नया नया बना हूं, मैंने तो आराम की जिंदगी देखी है, मुझसे नहीं हो पाएगा. वो मनोबल टूट जाता है उसका, क्योंकि वी आर नॉट प्रिपेयर्ड. आज से प्रिपेयर्ड हो. वी ऑलवेज क्रिटिसाइज गवर्नमेंट कि आपने ये इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाया, वो इंफ्रास्ट्रक्चर डिसेबल के लिए नहीं. वी डोंट क्रिटिसाइज आवरसेल्फ कि हमने अपने घर पे अपना ऑफिस बनाते समय हमने अपने फ्यूचर के लिए क्या बनाया. आज आप सबके पेरेंट्स कभी ना कभी फ्यूचर में बुढ़ापे में जाएंगे, कभी ना कभी. आई एम नॉट सेइंग कि हर कोई, पर किसी ना किसी को कोई ना कोई हेल्प की जरूरत है. बट वी आर नॉट टेकिंग केयर राइट नाउ, जब तक वो स्थिति आ नहीं जाती है. बी प्रिपेयर फॉर योर फ्यूचर और एक्सेप्ट इट. ठीक है. एनीबडी एल्स वांट टू से समथिंग? हिरल जी, प्रजापति जी, कितना दूध पी लिया, अभी कुछ तो बोलिए. मैडम हमें तो आपके सोच और सब ऐसा लगा कि ऐसी बातें होती रहे तो और मजा आए. बस वन साइडेड मजा आते रहे, है ना. सोच बढ़िया है आपकी, मतलब हम जो सोचते हैं ना उसको आवाज दिया आपने. अच्छा फरहीन धनानी जी, फरहीन जी बताइए. यस मैम, यस. बताओ बेटा, आपका कोई एक्सपीरियंस, कोई क्वेरी, कोई डाउट, कोई फीडबैक? Your story is really inspiring, which motivates us to stay positive always, and we should have a positive mindset. What you are taking to home? I am just asking, तुम क्या लेके जा रही हो? मैंने तो 3000 रुपए का खर्चा मैंने कॉपी पे लाया था. That's what we have learned from you, because many times some or the other situation we feel यार हमसे नहीं होगा, या we feel we are not capable of doing this, और someone अगर हमको कोई कुछ बोल दे तो we think यार ये बंदा मेरे बारे में ये सोच रहा है. But the thing is, we don't have to focus on what others are telling about us. We have to think what we feel about us, and we have to show the world. That we have learned from you. Thank you. विजय चौकसी जी, ऐसा विजय कुमार जलज. हाँ नमस्कार मैडम. नमस्कार, बताइए कैसा हालचाल है अहमदाबाद में? आप कहाँ पे हैं अभी? अहमदाबाद में ही. अहमदाबाद में खाना बहुत अच्छा मिलता है, ये मुझे पता है. बहुत जबरदस्त. बताइए. जिंदगी बहुत छोटी है, भगवान ने बहुत कुछ दिया है, तो इतना इकट्ठा हो जाने के बाद मैं कुछ करूंगा ऐसा सोच के बिना मैं समय का उपयोग दूसरों के लिए कैसे कर सकता हूँ. आधा घंटा भी निकाल के. पैसे तो ठीक है तो भी होता है, नहीं है तो भी बहुत कुछ हो सकता है. तो छोटी सी जिंदगी में ऐसा कुछ करना चाहिए जो हम कर सकते हैं, तो दूसरों को भी उपयोगी हो और दूसरों को भी कुछ हेल्प कर सकें, उसको भी कुछ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर सकें. आप क्या लेके जा रहे हैं घर पे? है जी, आप अपने घर क्या लेके जा रहे हैं आज? बस यही, दूसरों को हेल्प कैसे की जाए, ऐसे दिन में कुछ समय निकाल के कुछ करें. पंकज शाह जी, आर यू देयर? पंकज शाह,
भद्रेश पटेल, चर्मी दोशी जी। हेलो मैम। यस यस। या गुड इवनिंग मैम। जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, इट्स लाइक पावर ऑफ विजुअलाइजेशन। आप जैसा इमेजिन करते हो, आपको जो चाहिए, आप जो सोचते हो, वो एक्चुअल में यू रिसीव इट। और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, बिकॉज द सेम लाइक यू, आई मीन आई वॉज फ्रॉम अ वेरी स्मॉल सिटी, एंड एट दैट टाइम मुझे ऐसा था कि मुझे 12th स्टैंडर्ड में बहुत अच्छे स्कोर करने हैं और गुजरात की फर्स्ट नंबर की कॉलेज में मुझे कॉलेज में एडमिशन लेना है और अच्छी पढ़ाई करनी है। बट एट दैट टाइम कुछ पता नहीं था कि ये कैसे अचीव करूंगी, क्योंकि घर का माहौल ही ऐसा था कि लाइक गर्ल है, बाहर भेजना एंड ऑल दैट थिंग कोई सोच भी नहीं सकता था। बट जब भी सोच लिया कि हाँ मुझे ये चीज करने के लिए मैंने किसी से नॉलेज लिया कि ये चीज अगर मुझे करनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, तो उनसे गाइडेंस मिला कि तुझे इतने परसेंटेज आएगा, तू ऐसे करके बाहर जा पाएगी। तो मैं वो विजुलाइज करना स्टार्ट कर दिया कि मुझे कैसे भी करके इतने मार्क्स लाने हैं। एंड मैम यू विल नॉट बिलीव, मुझे 1 मार्क उससे कम नहीं आया था, 1 मार्क ज्यादा नहीं आया था। एग्जैक्ट परसेंटेज जो मैंने सोचे थे, मैंने पूरी मेरी मार्कशीट सोच के रखी थी। और यस, एंड एवरी डे में वो मेरी मार्कशीट को मैं विजुलाइज करती थी मेरे 12th स्टैंडर्ड में। और मुझे मैं मेरे सेंटर में, मेरे सिटी में मैं टॉप आई थी वो टाइम पे। तो मुझे मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था कि मैं ऐसे पूरे सिटी में 12th बोर्ड में ऐसा फर्स्ट आऊंगी और ऐसा सब कुछ। बट वो एक पावर ऑफ विजुअलाइजेशन था कि मुझे ये अचीव करना है, और ये अचीव करना है तो उसके लिए हार्डवर्क ये चीज का करना है। एंड वो डेफिनेटली फिर बाद में जाके मैंने फुल से किया। तो आई रियली बिलीव इन दिस थियोरी कि आप जो जैसा सोचते हो और उसको विजुअलाइज उसी तरीके से कर रहे हो, then you will definitely receive it. Thank you चर्मी जी। And फरहीन दनानी, फरहीन बताओ। Ma'am, you asked what are you taking from this session? Yes, so I just want to say one small quote that everyone has a problem in life, nothing more or less. It's just a perception of one how they deal it as a challenge or a stress. And one thing our chairman Fennel sir in his lectures or in class, he always tells that you don't have to avoid distractions, you have to learn to deal with distractions. So today I say that you don't have to avoid or run from the problems you have in your life, but you have to learn the art to deal with the problems you face in life. Thank you. Very nice, Farheen. Very nice, Farheen. And Montu Patwa ji. प्रणाम सारिका जी। अरे प्रणाम। आवाज आ रही है? हाँ जी। मैं कुछ और कहना चाहता हूँ। प्लीज। Because you are disabled, I am connected with a disability institution. शायद आपने नाम सुना होगा, श्री भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति, जो जयपुर की संस्था है। तो मैं अहमदाबाद में सेटल्ड हूँ और अहमदाबाद में उसकी एक ब्रांच है जो गुजरात के जो डिसेबल्ड लोग हैं उनको फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल, आपको तो मालूम होगा कि फ्री ऑफ चार्ज, नथिंग इज चार्ज फ्रॉम एनी बेनिफिशियरी, फ्री ऑफ चार्ज उनको आर्टिफिशियल फुट, कैलिपर्स, आई डोंट नो व्हाट टाइप ऑफ डिसेबिलिटी यू है और व्हाट मोबिलिटी एड यू यूज, आप क्या करते हैं मेरे को नहीं मालूम, बट व्हाट वी प्रोवाइड, जो मैं आपको बोल रहा हूँ और सबको बोल रहा हूँ कि आर्टिफिशियल फुट देते हैं, कुछ लोगों को मालूम होगा, कैलिपर देते हैं, ट्राइसिकल देते हैं, व्हील चेयर देते हैं, हियरिंग एड देते हैं, और बगल घोड़ी बोलते हैं गुजरात में, ऑक्सिलरी क्रचेज या बैसाखी बोलते हैं हिंदी में, वो देते हैं। एंड व्हाट वी डू, इट हैज अ सेंटर इन मुंबई आल्सो, आई अज्यूम दैट यू आर पोस्टेड इन मुंबई राइट नाउ, so we conduct camps also across, I mean, being a center in Gujarat, across Gujarat, various cities. So far we have conducted more than 100 camps in the last 12 years, and our like idea is to reach to the doorstep of the Divyang rather than calling him to my doorstep, because in any way he is a Divyang, so उसको जितना कम से कम तकलीफ दिया जाए उतना बेहतर है। आप तो आज एक बहुत ही एक लेवल पे पहुंच गई है
बट आपसे छुपा हुआ नहीं है बिकॉज ऑफ योर बैकग्राउंड कि क्या परिस्थितियां हैं अपने गाँव में और अपने छोटे इलाकों में, शहरों में भी है। तो आपसे सिर्फ एक ही प्रार्थना है या विनती है कि अगर कभी अहमदाबाद आना हो तो हमको याद करें, आप आएंगे तो हम जो नोबल कॉज लेके चले हैं उसमें हमको भी एक बहुत बूस्ट मिलेगा, हमको भी एक एनकरेजमेंट मिलेगा। एंड इफ यू वांट आई कैन सेंड माय, यू कैन फाइंड ऑन दिस गूगल आल्सो भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति अहमदाबाद, or if you want in a chat box I can give my mobile number also. I mean, although you can share, I will share mine. And गुजरात मेरा ससुराल है, तो अहमदाबाद आई यूज टू गो, मतलब अभी कोरोना होने से पहले मैं 2 बार गई थी, वीक में 2 बार, तो आई यूज टू गो। और सारे तीर्थ वगैरह भी गुजरात पे हैं। आनंद में कभी गई नहीं, तो मेरी आनंद की इच्छा थी, तो मैं हमेशा देखती रहती थी कि मुझे आनंद जाना है, एक बार राउंड मार के आना है ऐसा। तो अब मैडम आओ तो आनंद पक्का ना। So, and this is really very nice place. I will definitely come there. And एक बात जो परहीन बोल रही थी, उससे रिलेटेड मुझे कुछ याद आया था कि जनरली हम ये मानते हैं, जैसे हम बहुत बार सुनते हैं कि अमुक व्यक्ति जा रहा था, नदी में गिर गया तो डेथ हो गई, और हम बोलते कि नदी में गिर गया तो डेथ हो गई, या डूब गया, नदी में गिर गया तो डूब गया। पर एक्चुअली में वो नदी में गिरने से नहीं डूबता है। आपको पता है वो नदी में गिरने से नहीं डूबता है। वो पता है क्यों डूब जाता है? तैरना नहीं आता। तैरना नहीं आता है। तो आप तकलीफों से नहीं हारते, तकलीफों का, चैलेंजेस का सल्यूशन निकालना नहीं जानते, इसलिए हार जाते। तो डोंट अफ्रेड विथ एनी चैलेंज, ट्राई टू सॉर्ट आउट और इमीडिएटली उसका सोल्यूशन करो, रेदर देन पेंडिंग लिस्ट में डालो। मैं हमेशा मेरी पेंडिंग लिस्ट छोटी रखती हूँ। मतलब वो अंजलि जी ने भी बोला ना, तुरंत हाँ बोल दिया। अगर मैं तुरंत हाँ नहीं बोलूँ तो इट इंक्रीज माई पेंडिंग लिस्ट, भाई कल मुझे उसको फोन करना है, फिर बोलना है। आप द मोमेंट काम करो। मैं हमेशा समझती हूँ जो चीज तब की है तभी हो सकता है, उसको करके खत्म करो, रेदर देन पोस्टपोनिंग। अगर आपने ये कंसेप्ट सच में अपना लिया, आपको पता चलेगा, आपको एक तो पहले स्ट्रेस नहीं आएगा माइंड पे, आपको बीपी की प्रॉब्लम नहीं होगी, आप भूलेंगे नहीं, आपको हर बार सॉरी नहीं बोलना पड़ेगा। जो बहुत बार आपके मुंह से सॉरी बोलना पड़ता है, आपको ह्यूमिलिएट होना पड़ता है, वो छूट जाएगा। द मोमेंट आप करके खत्म करोगे, अभी दिमाग में आया अभी खत्म करो, रेदर देन थोड़ी देर में करता हूँ। ये वाला एटीट्यूड आप कहीं भी ले आओ, किसी भी सब्जेक्ट पे लेके आओ, आपका रेपुटेशन बहुत अच्छा हो जाएगा, आप सबके फेवरेट हो जाएंगे। ऑफिस में भी आप देखेंगे आपका एक अलग ऑरा बनता है। मैं ये वाला सिस्टम बहुत दिन से अपना रही हूँ, जब से मैं मुंबई आई हूँ, कि भैया करना है ना अभी करके खत्म करो, रेदर देन थोड़ी देर में बताते हैं ना। क्या हो जाएगा थोड़ी देर में? हम कौन सा पहाड़ तोड़ देंगे, हम कौन सा बजट पास कर देंगे, करके खत्म करो। तो विथ ऑल दिस थिंग, and if anybody come to know any type of chartered accountant which the person having any type of disability, please let us know. मेरे हस्बैंड ने थोड़े दिन पहले एक प्रोग्राम शुरू किया। I just want to tell something about him कि मुझे ऐसा लगता था रिगार्डिंग माई मैरिज ऑल्सो। अभी मैं तो ये चाहूंगी कि अभी आप अगर कैमरा बंद कर दे तो ज्यादा ही अच्छा होगा। तो रिगार्डिंग दिस मैरिज, हमेशा सभी लड़कियों को उलझन होती, दिस इज कॉमन ओनली। हर लड़की को उलझन होती कि लड़का क्या बोलेगा, हाँ बोलेगा नहीं बोलेगा। और जब शादी की टाइम आती है तो आप फोटो खिंचवाने जाते हैं, अलग से फोटो बनाते हैं, बायोडाटा बना के भेजते थे। तो मुझे उस चीज से बड़ा हेजिटेशन होता था। मुझे ये चीज समझ में नहीं आती थी। मुझे हमेशा डर लगता था कि यार किसी ने मुझे रिजेक्ट कर दिया तो क्या होगा। वो रिजेक्शन का डर बहुत ज्यादा था, और मैं नहीं चाहती थी कि मेरा कभी रिजेक्शन। यू वोंट बिलीव, ये मेरी जस्ट सोच थी। वो जो आते हैं ना तथास्तु वाली बात, मैंने मेरी लाइफ में मेरा बायोडाटा कभी नहीं बनाया। और मैंने शादी भी की कम से कम 25 कंडीशन के साथ। जनरली लड़के वाले कंडीशन रखते हैं, मैंने 25 कंडीशन रखी थी। एंड माई हस्बैंड इज चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, कॉस्ट अकाउंटेंट, LLB किया हुआ है, बैंकिंग डिप्लोमा है उनके पास, एंड ऑल इंडिया रैंक होल्डर भी है।
हर चीज में मुझसे ऊपर ही है, ऐसा नहीं कि मुझसे कहीं भी कमी हो। At the age of 16, when he was traveling, he was going to college. मुंबई के है गुजराती, पर गुजराती जैन तो मुंबई के थे, लोकल से जा रहे थे दोस्तों के साथ, एंड गिर गए ट्रेन से। ट्रेन से गिरने के बाद उनके ऊपर से ट्रेन चली गई और एक पैर कट गया इमीडिएटली। 16 साल की उम्र थी, कॉलेज का फर्स्ट डे था या फर्स्ट ईयर था, पढ़ाई भी ठीक से शुरू नहीं हुई थी, उनका पैर कट गया एंड इमीडिएटली उनको हॉस्पिटल लेके गए। और तब ट्रीटमेंट जो महावीर वो उन्होंने बताया फुट का, फिर उन्होंने वो शायद 6-7 महीना बेड पे रहे। एंड द मोमेंट जैसे ही उनको हॉस्पिटल लेके गए थे तो उन्होंने अपने पापा को एक ही बात बोली, वाज द ओनली सन ब्रेड अर्नर ऑफ द फैमिली। ही सेड, पापा मुझे माफ कर दो, मैं आज आपके कोई काम का नहीं रहा। उनके दिमाग में ये नहीं था कि पैर कट गया है, उनके दिमाग में था कि मैं वेस्ट हो गया, मैं मेरे पापा की जिम्मेदारी नहीं उठा पाऊँ। तब घर वालों ने बोला, तू अभी ये चिंता मत कर, तेरा ट्रीटमेंट करवाते हैं। 6 महीना बेड पे रहे, धीरे धीरे वो चलना सीखे, वापस से आर्टिफिशियल पैर लगाया। 16 साल में ये सब हुआ। 25 साल की उम्र तक उन्होंने 6 डिग्रियां ले ली और कभी छुट्टी नहीं लिया, ऑफिस में जॉब किया। सुबह 10 से शाम को 6 बजे तक ऑफिस से काम करते थे बैंक में। मॉर्निंग आवर में कोचिंग कोचिंग लेते थे, रात को कोचिंग लेते थे, 12 बजे आते थे और उसी लोकल ट्रेन से जाते थे एक पैर के साथ। एंड नाउ ही रीच टू दैट कंडीशन कि आज वो मोर देन 50,000 चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ डेली बेसिस पे कनेक्टेड। एंड आज भी उनके अंदर एक ही मोटिवेशन है कि आई शुड ऑलवेज हेल्प टू ICI। आज मैं यहाँ खड़ी हूँ, आज आपके सामने बोल रही हूँ बिकॉज ऑफ हिज मोटिवेशन कि वी शुड डू समथिंग। अपने लिए तो हम बहुत कुछ करेंगे। अचानक से, ये लॉकडाउन की बात मैं बता रही हूँ, अचानक से उनको एक कोट याद आ गया कि शायद किसी प्रेसिडेंट, चेयरमैन ऑफ ICI या किसी मिनिस्टर से एक डिसेबल बच्चे ने ये कह दिया, चार्टर्ड अकाउंटेंट ने, कि आपने जितना भी अच्छा काम किया होगा, मेरे लिए आपने क्या किया। ये लाइन उन्हें याद आ गई। उन्होंने बोला, आज मैं सफल हो गया मेरी लाइफ में, कल को मुझे कोई एक डिसेबल भाई या बहन ये क्वेश्चन पूछ दे कि आपने हमारे लिए क्या किया। द मोमेंट उनके दिमाग में ये आइडिया, उन्होंने स्टार्ट किया एक प्रोग्राम कि पूरे CA फ्रेटर्निटी में अगर कोई भी बच्चा डिसेबल है, आई विल कॉल हिम, उनका इंटरव्यू लेंगे, वी विल कॉल हिम एज ए सुपर अचीवर और लोगों को बताएंगे ये भी एक इंसान है। आप विश्वास नहीं करेंगे, आज उनके कुछ 22 एपिसोड कंप्लीट होंगे, 21 या 22। ऐसे ऐसे हीरा निकल के आते हैं। हम सोच नहीं पाते लोगों को ये तकलीफ है और हम सोचते हैं हमारी तकलीफें बड़ी है, हमारे पास ही समय नहीं है, हमारी जिंदगी बिजी है। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट जिसने मुझे रुला दिया, दैट पर्सन कैन नॉट स्पीक। वो पर्सन बोलता है लेकिन उसकी बातें समझ में नहीं आएगी। सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम इज विथ हिम एंड ही इज गिविंग कंसल्टेंसी। उसके फादर, वो बोलता है कुछ बाबा एग्जाम्पल, सॉरी, उसके फादर उसे ट्रांसलेट करके कंसल्टेंसी देते हैं एंड इज नाउ ए गुड कंसल्टेंट। वो फादर भी धन्य और वो बेटा भी धन्य। ऐसी स्टोरीज, और हम रोते हैं कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। ऑलवेज थिंक, ऑलवेज सी बिलो देन अस, कि हमारे नीचे लोगों के साथ क्या हो रहा है। देन यू विल फील कि यू आर वेरी मच प्रिविलेज्ड क्लास। उसी दिन से आपकी लाइफ में आपको लगेगा ही नहीं आपको कोई तकलीफ है। मुझे कभी नहीं लगता कि मेरे साथ कोई तकलीफ है। अगर कुछ है तो भी चैलेंज है, मुझे कुछ सिखा के जाएगा। ये कोरोना ने हमें कितना सिखा दिया। इतना कह के ही आई वुड लाइक टू कंक्लूड दिस प्रोग्राम। होपफुली आप लोगों को मेरा मैसेज सही गया हो, आप समझ पाए। और इफ एनीबडी वांट टू से समथिंग, आई विल राइट, और यू कैन राइट माय ईमेल ID sarikajain ca123@gmail.com। कभी भी किसी को कुछ कम्युनिकेट करना हो, एक्सेप्ट मैडम फाइल पास करा दो, ऐसा कोई ऑब्जेक्शन ना हो। ऐसी और कोई भी बातें हो, आराम से आप मुझे मेल कीजिए। मेरे से जितना हो पाएगा आई विल डेफिनेटली रिप्लाई। और अगर रिक्वायरमेंट होगा, आई विल शेयर माय मोबाइल नंबर ऑन ईमेल ऑल्सो। और यू कैन फॉलो मी ऑन लिंक्डइन। एक लाइन जो मैं हमेशा कोट करती हूँ कि समझदार इंसान वो नहीं है जो
ईंट का जवाब पत्थर से दे, समझदार इंसान वो है जो फेंके हुए ईंट से आसियां बना ले। तो आपको डिसाइड करना है, आपको रोना है या हंसना है, कैसे रहना है, खुश रहना है या नहीं रहना है। और अगर मेरी कोई भी बातों से आप लोगों को कहीं भी हर्ट हुआ हो, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। मुझे माफ कर देना, अपनी छोटी बहन समझ के माफ कर देना। आई हैव ओनली विश कि आप सबका अच्छा हो एंड यू विल डू ऑलवेज गुड इन योर लाइफ। अपना भी भला करो और हमेशा कोशिश करो कि आप सोसाइटी का भला कर पाओ। थैंक यू सो मच। Thank you, Sarika ji. There are no words to describe the feelings we have as of now. You have really touched us. Incredible stories. Salute to your spirit and your husband's spirit. Commendable. I would request all of you to give a huge round of applause. Thank you so much, ma'am. Thank you so much. I would now request CA Nisha Patel to give a formal vote of thanks to ma'am. Hello, Sarika ji. Thank you very much. Actually, the session was ऐसा लग रहा था as if it is not a virtual session. We are just one-to-one talking with you. Listening you, I am also have gone emotional. It was really, I'm really touched listening you. And मुझे ये लग रहा है कि भी as a CA woman और as a CA कितनी बार ऐसा होता है कि हम इतने सारे excuses अपने बीच में रख के, there are so many ladies I am seeing कि भी सब कुछ है but they are not coming, they are completing their CA लेकिन नहीं आते हैं कि भी one problem other problem. Seeing you, it's a good inspiration कि भी इतना कुछ है, still you are there to नहीं, इसको छोड़ के you have to come forward. So it's truly inspiring. मैं आपसे एक चीज शेयर करना चाहूंगी. Just yesterday it happened. Yesterday it was a World Food Day. तो हम लोग, there was a drive where we were giving food to needy people. So उसमें एक मैसेज में भी हमने दिया था कि whoever want to give donate food they can give. So there was one lady, she was handicapped, and उसने मुझे फोन किया that I want to give something. मैं समोसा लेके आऊंगी तो will it be fine? I said okay. Then she said but I am not able to come. Can you pick me up? So I thought okay. मुझे ऐसा नहीं पता था कि इतनी ज्यादा मतलब disability होगी. But when I reached there, her father पहले तो she was on wheelchair. Then उनके father ने उनको literally उठाया and I come to know that from neck से लेके नीचे तक she was not able to move her body. So I was literally touched and today I am listening you. मैंने उनसे सब बातें पूछी. So I was inspired by her inspiration कि इतना होने के बाद भी she is coming to give food to the needy people. And उससे बात करते time I came to know that she lost her job during Corona time. And वो सब करके I thought that still they are having this much positivity in their themselves. And listening you also, मुझे एक ही चीज याद आ रही है that somebody has rightly said, my disability has opened my eyes to see my true ability. So आपका ये जो विष्णु जी का आपने story बताया of 3000, that everything is within. So it is really inspiring from deep of my heart. I'm touched and you're really inspiring all of us. Thank you very much, Sarika ji. And we are looking forward to call you again and again, especially inspire our ladies, CA ladies who have cleared their CA, but they are not coming up. They have just stick to their family responsibilities only, giving the excuses that nahi family responsibility hai. You are the live example for them. So thank you very much. And we are looking forward you to come again and again to inspire us. Thank you very much, Sarika ji. Thank you, thank you, thank you. Thank you all. We end the session here. We would be having many inspirational sessions like this. Keep participating and let us all keep inspiring each other. Thank you so much. Thank you, ma'am. We end the session here. Thank you.